Mr. Rakesh Jhunjhunwala must be like how much average per year returns Mr. Rakesh Jhunjhunwala was making in his entire career? कोई भी guess करिए guys. 34%, no idea. 20%, okay. More the capital, less the CAGR. Okay. See, actually this is not the case. अगर आप देखें तो आप एक एंड पे ये भी कहते हैं कि मार्केट में बड़े लोग मार्केट करते हैं, and then on the other hand you are saying कि यार बड़े लोग कैपिटल ज्यादा है तो रिटर्न नहीं आएगी. So everything is there, guys. It is not. But guys, कई लोग यहाँ पे बोल रहे हैं 1000%, 100%. Guys, please mute yourselves. I would ask the participants to please be on mute so that it is easier for me as well to explain, and host can control. ठीक है. I hope the voice is fine. कुछ लोग कह रहे हैं voice नहीं आ रहा है. Okay. So guys, I think कई लोग guesses कर रहे हैं. Some people are guessing 100%, 68%, 1000%. So guys, मैं आपको reality बताता हूँ. The returns are in the range of exact. अगर आप calculate करें, it is subjective because obviously it hasn't been ever कि राकेश झुनझुनवाला जी ने clearly आके बताया हो. But guys, it is in the range of 20 to 22%. मतलब 3 साल में पैसे डबल हो रहे हैं basically. He is doubling the money every 3 years. So guys, if your target is कि यार साल भर में पैसे डबल हो जाए, महीने में पैसे डबल हो जाए, then I think, see, these returns are absolutely, yes, definitely subjective because nobody has actually calculated. ऐसे जाके exact थोड़ा बहुत differences there, but it is in the range of 20 to 22%, not much. 0.1, 0.2% or maybe 1% plus minus हो सकता है, but it is in the range of 22%. So guys, ऐसा होता है. And if every 3 years your money is doubling, just imagine how much you will have your corpus. Like at the end, just let's suppose आप profit के पैसे भी इधर डाल रहे हो. Just imagine how much corpus you will have at the end of maybe 10 years or 15 years. Just 1 lakh rupees invested will grow to 2 lakh rupees after 3 years. Then after 6 years, it will become 4 lakh. Then 9 years, it will become 8 lakh. 12 years, it will become 16 lakh. And at the end of 15 years, it will become 32 lakh rupees. So guys, it is just 32 lakh rupees, just 1 lakh rupees is converting. So if for the next 3 years, if you are investing 1 lakh rupees per year and wait for 15 years, you'll have 1 CR rupees. So guys, the thing is, लोग कहते हैं ना करोड़पति बनना वगैरह. So करोड़पति बनने की रेसिपी में मैंने बता दी ऊपर से, but in this webinar we'll be discussing something like that only. And if आपको ये जानने के बाद भी, if after the end of 15 to 18 years maybe at maximum, आप उससे पहले भी हो सकते हो, but at least after 15 years 16 years अगर आप नहीं हो रहा हो, then it was your choice, your mistake guys. सब पता होने के बाद भी if you are not able to act and if you are not able to use this information for your benefit, then it will be basically like it was your choice कि भाई आपको नहीं बनना था, तभी तो आपने नहीं choose किया. So we'll be discussing something like that in this webinar. How basically, what is the product, how the product helps pick the right stocks at the right time, how this happens. And then we'll also be discussing what exactly like legally our registration with the SEBI and all those details we'll be discussing. And then we'll be discussing how this product will help you minimize the risks and maximize the returns. And then we'll be just comparing this product with based on some risk appetite. We'll be discussing what can be the like average CAGR part over the last 5 years. We'll be discussing the over the last like past sometimes we'll be discussing about the performance, and then at the end we'll be discussing about the fees and charges so that things are clear for everyone. I hope everyone is with me. सबको समझ आ रहा है, right guys? So let's not waste any more time. Let's get started with the session. काम की बातें शुरू करते हैं. So I have Mr. Vignesh here. Mr. Vignesh is the CEO and founder of CEO and chairman of Jarvis Invest, which is basically our portfolio product. And Mr. Vignesh will be taking over the session from now on, and I'll be here. And at the end of the session, we'll be dealing with the Q&A round collectively. So guys, welcome Mr. Vignesh Reddy ji. Welcome Mr. Vignesh. Thanks, Apoorv. Very happy to be here, and I'm very happy that at least 81 people have decided to, take wealth in their own hands, and they're showing the seriousness to come on a Saturday morning in order to they become rich soon. Yes. So, should I take over? Absolutely. The stage is yours. Yeah. So, thank you, everyone.
Yeah, Apurva, if you could just take over the waiting room because I think people keep joining in. Yes, I'll be doing that. Not an issue. Okay, so everyone, good morning. So we are here to just discuss about a product called Jarvis Invest. So I am the COO of the company, and I'll take you through a quick presentation. It will not take more than 15 to 20 minutes, but it will give you a very different perspective on how investment is changing in the newer technology-enabled world, and what is the future of the entire markets and everything. So that's what we've tried to do. Just give me a second. I'm sharing my screen. Mr. Vignesh ji, there is just one small request. If we can maybe conduct a session in English type of thing, thoda Hindi, thoda English mix करके, because audience Hindi is more preferable. ठीक है जी, तो मैं हिंदी में करता हूँ. मेरा हिंदी हिंदी एक्चुअली हिंदी में करिए, वो ज्यादा बेटर होगा. हाँ जी हाँ जी. तो मैं हिंदी में बहुत कम मार्क्स मिले थे बिकॉज स्त्रीलिंग पुल्लिंग और वो सब इशू थे, बट ठीक है, तो उतना माफ कर दो. हिंदी का थोड़ा ऊपर नीचे होगा. ठीक है. सो अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट. आपको कब लगा कि नहीं लग रही है? ओके, सो जस्ट 1 मिनट. ओके, सो आई होप मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको. यस, स्क्रीन इज विजिबल. ओके, परफेक्ट. सो वेलकम टू जार्विस इन्वेस्ट. हम इंडिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इक्विटी एडवाइजरी है. हम एआई करके एडवाइस देते हैं कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, एंड फंड मैनेज करते हैं. मतलब बोलते हैं कि कब खरीदना है, कब बेचना है, और रिटर्न्स कस्टमर के लिए करा के देते हैं. राइट. सो ये हमारा टीम है. सुमित चंदा, ये सीईओ और फाउंडर है. इन्होंने एक्चुअली पूरा एआई का कोड लिखा है. पिछले 5 साल जो कोड चल रहा है एआई का, वो इनके थ्रू ही चल रहा है. इन्होंने क्रिएट किया है पूरा कंपनी. शैलेश जो हमारे सीटीओ है, ये मैं हूँ. राजेश बत्रेजा जो हमारे चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर है, जो हम एक्सपैंड करेंगे अभी दुबई, यूएस, यूके, तो वहां पे ही इज हेल्पिंग अस. And Jagan, Chinmay, Ashwin, and Nitin, all of these guys are frontline sales heads for different zones. Okay, so just coming into the next one. हम SEBI registered RIA है, registered investment advisor. So we are registered with SEBI. और हमारा जो भी processes है, सब कुछ is validated कि SEBI knows us since the last 5 years. So we are not unregistered or a Telegram group or anything. We are actually हमें काफी अवार्ड्स मिले हुए हैं. 2019 में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने मोस्ट इनोवेटिव वेल्थ टेक कंपनी दिया हुआ है. मनी एशिया ने हमें टॉप 50 इनोवेटिव फिनटेक का अवार्ड दिया था फॉर जार्विस. एंड आज के दिन हमारे पास ऑलमोस्ट 70,000 प्लस क्लाइंट्स हैं और 1,00,000 पार्टनर्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट को वैलिडेट करके मार्केट में ब्रांड एम्बेसडर्स है हमारे लिए. हम न्यूज में भी काफी बार आते हैं, तो ये थोड़ा सा न्यूज के आर्टिकल्स है जहां पे हम एआई बेस्ड एडवाइजरी फंडिंग उठाते हैं स्टार्टअप के नाम पे, और बहुत कुछ करते हैं. हम इवेंट्स करते हैं, हम एक्सिलरेटर प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किए हैं. और ये हमारे ब्रोकिंग पार्टनर्स हैं कि मतलब हम जो एआई के एडवाइस देते हैं वो एक क्लिक में आप आपके ब्रोकर के साथ फॉलो कर सकते हो, बिकॉज हमने पूरा बैकएंड इंटीग्रेशन किया हुआ है. तो आपको 1 क्लिक में एडवाइस भी एग्जीक्यूट हो सकता है और इजी भी है. तो ये थोड़े ऑलमोस्ट यहाँ पे 12 दिख रहा है प्लस अनदर 6, सो ऑलमोस्ट 18 ब्रोकर्स वी हैव ऑलरेडी टाइड अप विद. अभी ये वाले कॉन्वर्जेशंस पे अगर हम देखेंगे कि आज के दिन म्यूचुअल फंड्स या कोई मॉडल पोर्टफोलियो में जो भी अंदर जा रहे हैं उसमें क्या क्या लिमिटेशंस है. तो उसमें एक चीज होता है कि अगर आप 1 लाख रुपए डालो, 10,000 रुपए डालो, 1 करोड़ रुपए डालो, सबको एक ही पोर्टफोलियो मिलता है. यही सबसे बड़ा इशू है कि मान लो आप ज्यादा पैसा डाल रहे हो तो शायद आपका लिक्विडिटी ज्यादा हो. मतलब कोई अगर 30,000 डाल रहा है तो 10 टीसीएस स्टॉक ही ले पाएगा, बट कोई 3 लाख डाल रहा है तो शायद वो 10 टीसीएस स्टॉक, 2 रिलायंस के स्टॉक, वैसे अलग अलग पोर्टफोलियो ले सकते हैं. पर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि जब आप म्यूचुअल फंड या कोई मॉडल पोर्टफोलियो में डालते हो तो सबको एक ही एलोकेशन मिलता है. दूसरा इस कोई पर्सनलाइज्ड एक्सेस नहीं है. मतलब आपका रिस्क प्रोफाइल जो है कि आप हो सकते हो बहुत अग्रेसिव ट्रेडर हो सकते हो आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो सकते हो आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हो सकते हो आप रिस्क अवर्स इन्वेस्टर हो. तो ये आपका एक्सेस जो है
रिसर्च है, ये कोई भी मॉडल पोर्टफोलियो नहीं देता है। वो बोलता है सब लोग एक है, सबको एक ही मिलेगा। दूसरा एक ह्यूमन इमोशनल बायस आता है। तो ये अगर आप म्यूचुअल फंड में भी डालते हो, उधर एक फंड मैनेजर बैठा रहता है जो एक, और ह्यूमंस का हमेशा एक बायस आ जाता है कि अरे मार्केट ऊपर जा रहा है, अरे यूक्रेन वॉर हो गया, अरे पूरा नीचे गिर रहा है, हुआ नहीं हुआ, अभी चाइनीज का रियल एस्टेट मार्केट में कोई इश्यूज चल रहे हैं, सो विल द मार्केट फॉल और नॉट। सो डिफरेंट म्यूचुअल फंड विल हैव डिफरेंट व्यूज ऑन दैट। तो ये फंड मैनेजर जो पीछे कंट्रोल करते हैं, देयर बायसेस फॉलो इनटू द फंड। एंड लास्ट थिंग इज एब्सेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, कि कोई रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता उनका। वो क्या बोलते हैं, मार्केट ऊपर है खरीदो, मार्केट नीचे है खरीदो। कभी ये नहीं बोलते कि बेचो, मार्केट नीचे गिरने वाला है बेचो। ये हम कर पाते हैं। तो जार्विस इन्वेस्ट ये कर पाता है। अगर आप देखोगे हमारा क्लाइंट स्पेसिफिक पोर्टफोलियो, एक मिनट, sorry, yeah, so this client specific portfolio that you're seeing, कि we do a personalized portfolio approach, कि जो म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, यूलिप्स, डायरेक्ट ब्रोकिंग ये नहीं करते हैं। दूसरा व्हाट वी डू इज वी डू अ 365 डेज एक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। सॉरी, जस्ट वन सेकेंड, आई एम गोइंग टू रीओपन दिस फाइल। इसमें थोड़ा सा वो जस्ट, yeah, so we are saying that we do a client specific portfolio. We have an active risk management system, जो मतलब हर दिन 1.2 करोड़ डेटा पॉइंट्स चेक करके बोलता है कि क्या ये स्टॉक हमें होल्ड करना है, बेचना है, कि हमें रखना है हमारे पास। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है रिस्क मैनेजमेंट। ये आगे हम दिखाएंगे क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। एआई बेस्ड रिसर्च है। तो ये 1.2 करोड़ डेटा पॉइंट्स कोई आदमी बैठ के नहीं पढ़ सकता हर दिन और हर पोर्टफोलियो के लिए। तो इसमें बेनिफिट क्या है कि अगर हमारे पास 1 लाख कस्टमर है तो 1 लाख पोर्टफोलियो है। मतलब ऐसा नहीं कि एक पोर्टफोलियो सबको चिपका दिया। तो एआई के थ्रू ही हम ऐसे कर पाएंगे, नहीं तो नहीं है फ्यूचर में ये हाइपर कस्टमाइजेशन। लास्ट इज सिंपल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। तो मतलब 1 क्लिक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो पूरा। इसमें एक और बेनिफिट है, जैसे हम बोलते हैं क्लाइंट स्पेसिफिक पोर्टफोलियो। एक हो गया आपका क्लाइंट, मान लो किसी ने मार्केट गिरने के पहले आया और कोई मार्केट गिरने के बाद आया, तो इसमें भी फर्क पड़ जाता है कि हर क्लाइंट का पोर्टफोलियो अलग अलग हो जाता है, किस डे पे आ रहे हैं, किस किस टाइम पे आ रहे हैं, कितना अमाउंट डाल रहे हैं। सो ये हाइपर पर्सनलाइजेशन है इस प्रोडक्ट में। तो वाई जार्विस इन्वेस्ट, क्योंकि हम एक पोर्टफोलियो, हमारा एआई एक पोर्टफोलियो देता है हर कस्टमर को, और जिसमें रिस्क भी एडजस्टेड है एंड स्टॉक सिलेक्शन भी उस रिस्क के अगेंस्ट है, और उसमें हमें 2-3 मॉडल भी है। सो यही जो 4 चीज हमने बोला था कि मॉडल पोर्टफोलियो में क्या क्या नहीं है, ये सब जार्विस सॉल्व करता है। वो पर्सनलाइज्ड पोर्टफोलियो देता है, एआई बेस्ड इंफॉर्मेशन, कोई ह्यूमन बायस है नहीं, एंड लॉजिकल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। तो कोई भी ह्यूमन बायस, कोई भी सिचुएशन है नहीं। एंड एआई में अगर आप देखोगे क्वांटिटेटिव, फंडामेंटल, सब कुछ अंदर जाता है वो 1.2 करोड़ डेटा पॉइंट्स में। वो उसमें और डिस्कस करेंगे। तो द फिलॉसफी जो है कि इमोशनलेस इन्वेस्टिंग है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कि बहुत बार ह्यूमन इमोशंस ही सबसे ज्यादा लॉस करा के देते हैं। तो ये पूरा चीज जो है, इसमें इमोशनलेस इन्वेस्टिंग, फंडामेंटल रिसर्च, क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजीज, रिस्क मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड क्लाइंट सेंट्रिक, हर क्लाइंट के लिए अलग अलग पोर्टफोलियो जो उनके मुताबिक है। ये रिस्क मैनेजमेंट का एफिशिएंसी क्या है? अगर कोई बोलता है यार रिस्क मैनेजमेंट आप बोलते हो, इसमें हुआ क्या है? जैसे कोविड का क्रैश था, उस टाइम पे हमने कस्टमर्स का रिकमेंडेशन दिया था कि पोर्टफोलियोज एग्जिट करो। ऑलमोस्ट 70% कस्टमर्स का वेल्थ हमने कैश में बैठे थे, तो हम एग्जिट करके बैठे थे। उसके बाद क्रैश हुआ, और जब क्रैश हुआ तब हम वापस अंदर आए 1 महीने बाद। बट ये जो क्रैश हुआ था, ये इन्वेस्टर्स का ऑलमोस्ट 50-70% बचाया वेल्थ को उस टाइम पे, जो मार्च 20 का क्रैश हुआ था। ये वापस कब ट्रिगर हुआ? ये जैन में ट्रिगर हुआ, जैन 17 को ट्रिगर हुआ, जहां पे सडनली इंडेक्स करेक्टेड 7%। उस टाइम भी हम 80% इस पे थे, कैश पे बैठे थे। सो वी जार्विस बताता है कि अपना आपका स्टॉक कब बेचना है।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कोई म्यूचुअल फंड कोई भी प्रोडक्ट नहीं बताता है कि बेचना कब है, तो वो हम एआई के थ्रू बता पा रहे हैं। अभी दूसरा चीज अगर आप देखोगे कि यार ये 1.2 करोड़ डेटा पॉइंट्स आप बोल रहे हो, तो ये क्या क्या है, तो ये एआई का एक न्यूरल नेटवर्क मॉडल है। तो अगर आप देखोगे तो 3.5 लाख फंडामेंटल डेटा पॉइंट होता है, ऑलमोस्ट 1.1 करोड़ प्राइस वॉल्यूम टाइम सीरीज का होता है जो पिछले 10 साल का डेटा खींचता है। कॉर्पोरेट एक्शंस जो है कि कोई डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है, बोनस कर रहा है, 1:1 कर रहा है, तो वो सब भी अंदर कैप्चर होता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, अगर गवर्नमेंट कुछ कर रहा है ऑयल के लिए, कुछ और के लिए, सो ऑल दिस टैक्सेस ऑल्सो कम इन टू दिस। रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस, कि अगर मान लो कोई भी रेगुलेटरी बॉडी ट्राई कुछ बोलता है तो टेलीकॉम में क्या इंपैक्ट है, सो ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो कम इन। ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इवेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 120 प्लस पैरामीटर्स। तो जब कोविड हुआ था, ग्लोबली फार्मा पहले ऊपर गया, उसके बाद डोमेस्टिकली फार्मा, डोमेस्टिक मार्केट में फार्मा ऊपर गया। तो हमारे एआई ने पकड़ लिया कि ग्लोबली फार्मा ऊपर जा रहा है, और फिर डोमेस्टिक क्लाइंट्स को बोला कि ठीक है डोमेस्टिक भी बढ़ेगा, और वो कोरिलेशन एआई ने पकड़ा था। सेंटिमेंट एनालिसिस, मान लो कोई भी न्यूज आर्टिकल हो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये रियल टाइम इंटरनेट से पकड़ता है कि क्या फोरम्स में चल रहा है, और उसके बाद वो भी एक इनपुट है अंदर। और बाकी बड़े मैक्रोज है जो बाकी कंट्रीज का क्या है हो रहा है करके, बट ब्रॉडली ये सब न्यूरल नेटवर्क में घुस के बाहर यू गेट एन आइडिया कि ये वाला स्टॉक का प्राइस प्रिडिक्शन एंड एक्यूरेसी क्या है, एंड उसके आगे द होल पोर्टफोलियो इज मैनेज्ड। सो अगर हम देखेंगे पोर्टफोलियो अप्रोच वही है, रिस्क मैनेजमेंट। हम पहले रिस्क मैनेजमेंट उठाते हैं, फिर फंडामेंटल एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी मॉडल की यूजिंग डीप लर्निंग मॉडल्स, ये एआई का मॉडल्स है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा ये प्राइस मूवमेंट्स का। फिर पोर्टफोलियो का कस्टमाइजेशन, कि इन्वेस्टर बोला कि हाँ मैं 1 साल के लिए देख रहा हूँ रिटर्न, 5 साल के लिए देख रहा हूँ रिटर्न, तो वैसे स्टॉक्स वो चूज होता है इन्वेस्टर के मुताबिक। एंड फिर वेट एडजस्ट होता है कि व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट रिटर्न काइंड ऑफ थिंग, कि हाउ डू वी मैक्सिमाइज रिटर्न बट रिड्यूस रिस्क, तो वो पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन होता है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। दिस ग्राफ इज बेसिकली एक्सिस बैंक, टीसीएस, आईटीसी, बजाज देखोगे, एक ब्लू लाइन है और एक ऑरेंज लाइन है। तो ऑरेंज लाइन है जो हमने प्रिडिक्शन किया है कि ये स्टॉक यहां से यहां जाएगा करके, और 15 दिन बाद ये ब्लू लाइन है जो एक्चुअली हुआ है, जो आपको दिख रहा है ऐसे मोर वेवी एंड हायर साइड। तो हमें ऑलमोस्ट 15 डेज आगे तक एआई का प्रिडिक्शन एफिशिएंसी दिख रहा है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट कि हमारा एआई प्रिडिक्शन ऑलमोस्ट 95% एक्यूरेट है अगर आप देखोगे इसमें। Absolutely, this is pretty interesting. Yeah, so this is one. So this is only possible with AI. It's not possible to humanly do this. Now, coming back to some of the things where our risk management system kicks in, we don't like risk management में हम 2-3 चीज करते हैं। एक हो गया कि प्रॉफिट बुक करना, एक हो गया कि पार्शियल प्रॉफिट बुक करना, कि हाँ स्टॉक ऊपर जा रहा है तो हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। एक हो गया कि स्टॉक के लिए एग्जिट कर लेते हैं कि ओके नाउ इट्स नॉट लुकिंग वेरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, और एआई इज फिगरिंग आउट अ सेल, सो इट गेट्स आउट। एंड पोर्टफोलियो रीसेट, ये कोविड के टाइम पे हुआ था पोर्टफोलियो रीसेट, जहां पे पूरा पोर्टफोलियो हम बेच के बाहर बैठे थे मार्केट में। हमें समझ में नहीं आया क्यों, हमें इनफैक्ट कस्टमर्स कॉल करके गाली दे रहे थे पहले 10 दिन में, आप अब बाहर क्यों बैठे हो मार्केट से, सब कुछ तो ठीक जा रहा है। फिर कोविड के बाद जो क्रैश हुआ, सबने कॉल करके वही बोला अरे आपने तो बचा लिया हमें, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है पोर्टफोलियो रीसेट। ये 2 साल में एक बार आता है या 3 साल में एक बार आता है, बट जब आता है एटलीस्ट हमें पता है कि ये बहुत अच्छे से काम करता है। हमारे पास 2 स्ट्रैटेजीज हैं जो आप जब आप प्रोडक्ट यूज करोगे, तो एक है जो एसेट एलोकेशन है, विच इज गोल्ड, लिक्विड बीज एंड इक्विटी, तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये स्ट्रैटेजी अच्छा होता है जब मार्केट नीचे जा रहा होता है, उस टाइम गोल्ड जनरली ऊपर जाता है एंड देन लिक्विड बीज रिमेन्स कांस्टेंट। सो बहुत सारे कस्टमर्स जब अभी मार्केट नीचे जा रहा था फ्रॉम जैन टू अगस्त, उन्होंने ऐप में अपना स्ट्रैटेजी एसेट एलोकेशन चेंज कर दिया, तो ऑटोमेटिकली एलोकेशन चेंज हो गया। और जैसे ही अभी मार्केट टर्न अराउंड किया है, दे हैव मूव्ड टू कंप्लीट इक्विटी स्ट्रैटेजी। हाउएवर इफ यू आर हेज्ड ऑलरेडी इन अदर एसेट क्लासेस, वी सजेस्ट टू गो फॉर कंप्लीट इक्विटी स्ट्रैटेजी। वहां पे आपका रिटर्न्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज मच हायर। ये हमारे रिस्क प्रोफाइल्स है। हर कस्टमर को 5-10 क्वेश्चन हम पूछते हैं इनिशियली,
उन 5-10 क्वेश्चन के बेसिस एआई बताता है आप कौन से रिस्क प्रोफाइल में बैठते हो. हाउएवर यू कैन मैन्युअली चेंज इट ऑल्सो. मान लो एआई बोलता है आप कंजर्वेटिव हो, तो आप मैन्युअली चेंज कर सकते हो कि नहीं मैं तो अग्रेसिव हूं, मेरा तो कंजर्वेटिव हो चुका है. हाउ मच? ओके, निखिल इज राइटिंग समथिंग. How much charges? Yes, we will cover it. Unfortunately, I mean, I think, yeah, just please undo that. Somebody has written something on the presentation, I guess. But yeah, don't worry about it. I'll just cover it. It's not going to take more than 5 minutes. It's really cheap. You guys will be very surprised when I come out with the number. So let's say Jarvis का performance जो है, 80% of our customers are between aggressive and very aggressive, right? Because everyone is doing this. Like उन्होंने mutual fund कर लिया है, उन्होंने उसके बाद थोड़ा सा stock investment कर लिया, and then this is what they're using for extra returns, right? So for extra returns they're getting almost 19 to 25%. So almost we're talking about 20 to 23% in aggressive in this. Nikhil, could you not write this whatever you're typing? I will open it up for questions and then we can do this. गाइस सबके लिए मैं बोल रहा हूँ कि एट द एंड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो प्लीज गाइस क्वेश्चंस आप चैट में ही पिंग करते रहिए. एंड ये सारे लाइक जो भी ये लिख रहे हो आप प्लीज इरेज कर दीजिए, हम लोग बाद में करेंगे. दिस इज डिफरेंट गाइस. ओके, सो जो इंट्राडे वाला है उस पे भी आऊंगा कि नाउ दिस इज मोर ऑफ अ लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ अ व्यू. However, we are coming up with a one stock product in the next 2 months, so that will also be available for our customers. जहाँ पे हम almost 2 to 4 using the same AI method, we will be giving 2 to 4 stocks per month, which will give you a very very different view. That's purely that this is the call, this is the profit, and we will tell when to get out. Right now, the pricing that we charge is 2.5% per year of whatever we manage. So for example, if it is but we charge it half yearly. तो मान लो किसी ने 30,000 इन्वेस्ट किया है, then we charge approximately 350 rupees per plus GST for the first 6 months, and उसके बाद पोर्टफोलियो मान लो 10% बढ़ गया, then 1.25% of the new portfolio value is what we charge. So the way we look at it, it's less than 50 to 100 rupees a month for an investment size of 30 to 50,000, right? So it is actually dirt cheap. The reason why we kept it very economical is because we wanted people to try it out, we wanted people to adopt it, right? So this is from that perspective that you can see in the past we have created almost 20 to 25%, but this was before this 9 months of market being negative, right? Excuse me, sorry. So 9 months the market was negative and now it has recovered again, right? But what we noticed is before Jan we were almost 35% CAGR. Every year we were giving 35% return. So now when the market again continues being sideways or upwards, we will be able to give the past performance. I mean, we can see what's happened in the past performance, and AI continues with that, right? So this is again just talking about some of the AI hyper personalization, one-click execution. And we have an entire support team. So there's a chat functionality on the app where you can just chat with us in case you have any doubt, anything. We have a live support team who will keep on helping you with your own questions and this thing. So this is the presentation, and most importantly, I think all of us fall prey to human emotions. हम सब human emotions पे पड़ जाते हैं कि ये स्टॉक मैंने लिया, फिर लॉस में गया, फिर हम पकड़ के रखे हैं, फिर और लॉस में गया, और फिर एंड में वो जाके मर जाता है, राइट? सो ये एक्टिव रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हम इसीलिए बोलते हैं कि लव द मनी नॉट द स्टॉक्स, कि ये हमारा एक टैगलाइन है कि आप जब हम बोलते हैं खरीदो या बेचो, क्यों बेचना है? क्योंकि एआई बोल रहा है बेचो, क्योंकि 1.2 करोड़ डेटा पॉइंट समझाने के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट कि क्या क्या समझा सकते हैं. तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आप डिसीजंस लो जिसमें आपका रिटर्न्स ज्यादा हो, एंड स्टॉक के पीछे कि ये स्टॉक को मैं पकड़ूंगा एंड ऑफ द एंड तक, एटलीस्ट इन जार्विस फिलोसफी हम वो नहीं कर रहे हैं. तो ये हमारा प्रेजेंटेशन है, एंड अभी चैट्स का रिस्पॉन्सेज वी विल डू. सॉरी, जस्ट वन थिंग. सो गाइस, जो भी क्वेरीज एंड कमेंट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, जस्ट आप चैट में पिंग करते रहिए, एंड एक एक करके मैं विघ्नेश जी से पूछूंगा, एंड देन वी विल बी टेकिंग केयर. सो विघ्नेश जी, मे बी यू कैन स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन एंड हम लोग डिस्कस करेंगे. या
So first question है, like there was a question for first question from Mr. Rajan. He was asking कि can you shed more light on the data points, मतलब ये जो इतने ढेर सारे data points है वो exactly क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा उसके बारे में आप और डिटेल बता सकते हैं ऑडियंस को. So the biggest thing जो data points है जो AI कर पाता है कि अगर आप एक फंड मैनेजर या कोई भी ह्यूमन बीइंग को रखो या एल्गोरिदम को रखो, एल्गोरिदम्स का भी एक डिफरेंट व्यू है कि वो एक ही डायरेक्शन में काम करता है, या तो साइडवेज अप और डाउन. एआई का बेनिफिट ये है कि वो चेंज होता रहता है. डेटा अगर बता रहे अपवर्ड ट्रेंड है तो वो इमीडिएटली चेंज होता रहेगा. अगर डेटा दिखा रहा है ये डाउनवर्ड ट्रेंड है तो इमीडिएटली वो डाउनवर्ड ट्रेंड का एल्गोरिदम चालू करेगा. सो द पॉइंट इज कि ये हाउ क्विक वर यू. ओके, प्लीज एलैबोरेट ऑन डेटा पॉइंट्स. वही है ना भास्कर सिंह का? सॉरी. Yes. So I think you want to know how quick were you to exit during the crash, how much time dilation in fetching this data into your system. So literally हर दिन शाम को 6 बजे ये 1.2 करोड़ डेटा पॉइंट्स हमारे सिस्टम पे है. एआई का प्रोग्राम हम इसको 35 सेकेंड्स में रन करता है कि ये पूरा समझ के क्या करना है. 35 सेकेंड में ये रन होके रेडी हो जाता है, राइट. एंड ये क्रैश के पहले हम लिटरली 2 दिन क्रैश के पहले हम निकल जाते हैं यूजुअली. यही हमारा पास्ट का ट्रेंड है. मैं कोविड का क्रैश देखूं, जैन का क्रैश देखूं, जून का क्रैश देखूं, तो अलग अलग क्रैशेस पे हम बाहर आके फिर 5-6% करेक्ट होता है, फिर वापस एआई डिप्लॉय करता है बिकॉज वापस अनसर्टनिटी है मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं. सो दैट्स वन आंसर. थैंक यू. सेकंड आंसर, सेकंड क्वेश्चन इज कि लाइक एक प्रोजेक्शन अगर हम लोग क्लाइंट्स को दिखा पाए कि लाइक या एक एक्सप्लेनेशन दे पाए कि लेट सपोज 1 लाख का कैपिटल है तो उसमें बेसिकली कितने चार्जेस होंगे और कितने रिटर्न सपोज 1 साल के बाद कितना बन जाएगा पैसे की वैल्यू. एंड एक इजी वे में ब्रेक डाउन आपने ऑलरेडी बताया है बट और इजियर वे में भी. डन. सो अगर मान लो किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो उनका फीस जो है पहले 6 महीने के लिए वो 1250 रुपीज 1250 प्लस जीएसटी, तो मतलब ऑलमोस्ट 200 रुपए पर मंथ प्लस जीएसटी पकड़ लो, तो उतना है 1.25% ऑफ दिस, राइट. सो 1250 पे करेंगे. अभी जो 1 लाख है वो पूरा इन्वेस्ट होगा. एवरेज रिटर्न्स जो अग्रेसिव पोर्टफोलियो या जो भी हम अग्रेसिव वेरी अग्रेसिव देंगे वो ऑलमोस्ट 22-25% है, राइट. सो 22-25% मतलब वो मान लो 6 महीने में बन गया 1 लाख से 1,11,000. तो फिर हमारा नेक्स्ट फीस जो है वो वो वापस अराउंड 1300-1350 रुपीज होगा क्योंकि अभी आपका पोर्टफोलियो वैल्यू बढ़ गया वैसे, राइट. तो एक साल बाद वो 1 लाख बन गया ऑलमोस्ट 1,22,000 इन द पास्ट रिटर्न्स देखेंगे. एंड कस्टमर ने दिया 2,500 रुपए, तो उनको ऑलमोस्ट 1,18,000 का पोर्टफोलियो नेट ऑफ ऑल फीस मिला है. आई थिंक यू मे बी पूरा. दिस वाज प्रीटी नाइस. सो सिंपल है गाइस, मतलब इट इज समथिंग लाइक कि 200-300 रुपए अगर आपने 1 लाख रुपए दिया है तो समथिंग अराउंड 200-300 रुपए आप दे रहे हो. एंड रिटर्न वाइज आप एक्सपेक्टेशन जैसे सी गाइस द थिंग इज अभी आपने जो रिटर्न देखे वो उसमें ये जो मार्केट क्रैश हुआ है वो इनकॉर्पोरेटेड है. द बेस्ट पार्ट इज गाइस कि जब भी मार्केट क्रैश हो रहा होगा आप पहले ही मार्केट से निकल जाओगे. वो कहावत होती है ना, बाय लो सेल हाई, बट इन्वेस्टर्स ऑफन टेंड टू डू द ऑपोजिट. आप उल्टा आप ऊपर लेते हो, जब रैली चल के ऊपर रैली हो गई रहती है देन आप सोचते हो यार अडानी इंटरप्राइजेस में तो 2000 का हो गया, रैली चल रही है, आप ले लेते हैं. अचानक से यू विल फाइंड कि द स्टॉक स्टार्ट्स कमिंग डाउन. सो दीज थिंग्स आप ऐसे फंसे नहीं रहोगे यहाँ पे. फर्स्ट पार्ट. सेकंड इज इट इज वेरी कॉस्ट एफिशिएंट. एंड गाइस इसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि इज इट अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट और एसआईपी? ओके, सो इसमें it is actually whenever you want to invest more, we have an invest more button. तो ये SIP मतलब ऑटोमेटेड SIP नहीं है, बट मान लो आपको और कैपिटल बढ़ाना है. हमने देखा है बहुत सारे कस्टमर्स जो मिनिमम है AI काम करने के लिए वो 30,000 का लिक्विडिटी चाहिए होगा. तो मान लो ब्रोकर अकाउंट में 30,000 है तो AI बोलता है कि ये खरीदो वो खरीदो. बट हमने देखा है ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर कस्टमर्स पहले 30,000 इन्वेस्ट करते हैं एंड इमीडिएटली 1-2 हफ्ते के अंदर वो 1 लाख रुपए पे बढ़ा देते हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा 30,000 तो 4-5% बढ़ गया 1 महीने के अंदर, तो अचानक से और पैसा डालना चालू करते हैं. सो इन्वेस्ट मोर का ऑप्शन है जिसमें आप कभी भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट डाल सकते हो. उसमें मंथली, वीकली, डेली आपका मर्जी. जब भी आपका कॉन्फिडेंस सिस्टम पे बढ़ता है आप बढ़ा सकते हो आपका इन्वेस्टमेंट. तो बेसिकली लमसम भी पॉसिबल है, एसआईपी भी पॉसिबल है, बस आपको मैनुअली हर मंथ ऑर्डर डालना होगा एसआईपी का. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज द प्रोसेस कंप्लीटली ऑटोमेटेड
that is, will it be linked to any broker and entry exit will happen automatically, or will you give us advice and how exactly? So this is the question. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा रेगुलेटरी इश्यूज भी है दैट हम आपके लिए ट्रेड नहीं कर सकते अंडर सेबी। तो अगर कोई भी आपके लिए कर रहा है वो ऑलमोस्ट इलीगल है, राइट? सो वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं होंगे। तो पॉइंट क्या है, हम आपको हर दिन ऑलमोस्ट 9:30 के 9:15 के पहले अराउंड 9 o'clock आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आपका कोई एक्शन है, जो 2 हफ्ते में एक बार जनरली एक रीबैलेंसिंग या रिस्क मैनेजमेंट कॉल आता है। तो अगर आपके पास कोई भी कॉल आ रहा है वो 9:15 के पहले आएगा, आपको एक एसएमएस आएगा, आपको एक व्हाट्सएप आएगा, आपको एक कॉल आएगा, आपको एक ऑटोमेटेड कॉल आएगा, आपको एक ईमेल आएगा। तो 5 मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन करेंगे। आपको सिर्फ जारविस का ऐप खोल के एग्जीक्यूट करना है या आपको एडवाइस आपके ब्रोकर अकाउंट में फॉलो करना है, आपकी मर्जी, बट आपको वो स्टेप करना है कि आपको एग्जीक्यूट करना है 1 क्लिक में। सो बेसिकली गाइस ऐसा कुछ होता है कि जब भी कुछ चेंज करना होता है, कुछ भी बाई सेल करना होता है, तो आपके पास अलर्ट आता है 5 वे से, फोन कॉल, एसएमएस, सब कुछ आता है, एंड आपको बस 1 क्लिक करना होता है, ऑटोमेटिकली ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इट्स जस्ट कि सेबी के रूल्स हैं, पोर्टफोलियो हैंडलिंग, अकाउंट हैंडलिंग हम लोग कर नहीं सकते, इसलिए आपके अप्रूवल मैंडेटरी है। करेक्ट। एंड एक और बहुत ऐप वगैरह ये सब हम लोग बता देंगे गाइस। ऐप भी है, बट आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली ना, सेबी अलाउ करता है अगर आप 50 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो पीएमएस करके एक लाइसेंस होता है। यस पीएमएस, यस गाइस, अगर आप 50 लाख प्लस दे रहे हो तो आप हमें पैसे भी दे सकते हो, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, एंड वो मैनेजमेंट होता है। बट गाइस हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से, कि जो लोग 50,000 1 लाख डालते हैं, देन एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, जैसे एक कॉमन क्वेश्चन है कि अगर सपोज हर मंथ 30 के करना है तो एनी इशू, और क्या ये प्रोसेस, लाइक कैसे ये प्रोसेस को करेंगे? तो आई थिंक समवॉट रिपीटेड है, बट फिर भी आई थिंक अलग से अगर क्लैरिटी हम लोग इसको डिस्कस कर लें तो इन्वेस्ट मोर करके, जैसे आप हमारा ऐप है तो उसमें आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा मान लो पहले इन्वेस्टमेंट के बाद। तो जब भी आपको एक्स्ट्रा 30,000 डालना है हर मंथ, आप उधर इन्वेस्ट मोर का बटन क्लिक करके आप 30,000 कर सकते हो। पूरा फ्लॉलेस प्रोसेस है, बहुत ऑटोमेटेड है, आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। द ओनली गुड पार्ट अबाउट दिस होल थिंग इज आपको खुद समझ में आ जाएगा जब रिटर्न्स देखोगे, आप एक्स्ट्रा डालोगे आपका पोर्टफोलियो। पॉइंट क्या होता है ना कि अगर आप देखो म्यूचुअल फंड्स ऑन एवरेज देते हैं 14%, 15%। तो जब आपको 22-25 वो भी डाउनवर्ड साइडवेज मार्केट में मिला है, अपवर्ड मार्केट में पिछले साल हमारे वेरी अग्रेसिव कस्टमर्स को ऑलमोस्ट 50% मिला था रिटर्न। तो जब 50% मिलता है तो कोई बोलता है कि यार छोड़ दो ये सब बाकी चीज, लेट्स कंटिन्यू विद जारविस इटसेल्फ। सो पास्ट में देखेंगे बुल मार्केट, साइडवेज मार्केट, जारविस बहुत ही अच्छा करता है। अभी ये डाउनवर्ड मार्केट में 25% करके देना, नंबर थोड़ा कम दिख रहा है, बट ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड नंबर। Actually, even if it is longer term में 25% is also very good, but market गिर रहा है जब, तब 25% is actually pretty good. Then नरेंद्र शुक्ला जी का एक क्वेश्चन है, इज जारविस अ पेड सॉफ्टवेयर? यस, इट इज अ पेड सॉफ्टवेयर, बट उसके बाद द क्वेश्चन इज फॉल्स पॉजिटिविटी क्या है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज हो रहा है, या ओनली एनएलपी बेस्ड सेंटिमेंट एनालिसिस पे रिकमेंडेशन देते हैं? थोड़ा सा टेक्निकल है। बेसिकली ही इज आस्किंग कि लाइक फॉल्स पॉजिटिविटी मतलब लाइक कितने बार इसने सही रिकमेंडेशन नहीं है, गलत रिकमेंडेशन कितने बार दिया है। दूसरा, क्या दीज थिंग्स, ये जो भी चीजें हैं वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मतलब लाइक बेसिकली कोई, इनका क्वेश्चन सी, द पॉइंट इज बेसिकली कि कोडिंग वाइज हाउ एग्जैक्टली इज द कोड, थोड़ा सा ये पूछना चाह रहे हैं। सो आई थिंक थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, बट मे बी इफ यू कैन शेड सम लाइट। ओके, सो we are almost 85% accurate on the prediction model, but the best part is because of risk management system, our overall portfolio's downside doesn't go below 10% in the past। अगर हम देखेंगे तो मान लो सब खराब हो गया, तो एक स्टॉक अगर मान लो 10% तक नीचे आ गया, इमीडिएटली वो रिस्क मैनेजमेंट एग्जिट हो जाता है। एंड जनरली पोर्टफोलियो में 5-6 स्टॉक होते हैं। सो ये एक ट्राइड टेस्टेड मॉडल है जो 5 साल से हम इंप्रूव कर करके अभी यहाँ पे पहुंचा हुआ है। राइट नाउ यस, सो अभी जो एनएलपी मॉडल्स की आप बोल रहे हो कि ये एक्चुअली हमारा न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग मॉडल्स है जो एआई का कोरिलेशंस और वो बैक टेस्टिंग करता रहता है। सो जब भी कोई नया इवेंट होता है, वो पीछे जाके 10 साल के डेटा में देखता है कि ये कितने बार ये इवेंट होने पे क्या क्या हुआ है प्राइस पे, what is the movement of volume that's happening, everything it reads and tells you what is the actual thing।
बट या विल नॉट गेट इनटू टू मच टेक्निकल्स बिकॉज ये हमारा सॉफ्टवेयर है, तो हम we kind of patented it. We don't want the secret sauce going out, and we'll keep improving that. Got it. Now, Satyendra जी का एक क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी विड्रॉ एंड इज देयर एनी एग्जिट लोड? तो आई थिंक एग्जिट लोड की तो बात ही नहीं आती, हम लोग को ये पॉइंट ही क्लियर करना होगा कि आपके अकाउंट में स्टॉक्स हैं पूरे। बेस्ट थिंग यही है कि हम पूरा एडवाइस जो दे रहे हैं ये आपके ब्रोकरेज अकाउंट में एग्जीक्यूट होगा। आपको जिस दिन चाहिए आपका पैसा आप बेच के कर सकते हो, हमें पता भी नहीं है आप बेच रहे हो कि नहीं बेच रहे हो, क्योंकि वो आपका ब्रोकर अकाउंट है। आप अंदर जो भी करना है, एग्जिट लोड जीरो है क्योंकि आपका पैसा है, आपका स्टॉक है। हम एडवाइजरी कंपनी, हम एडवाइस देते हैं ताकि कस्टमर का पोर्टफोलियो बढ़े। ओके, then there is a question ki let's suppose I received a stock message before 9:15 and opening pe the stock moves up by 5%, so can I put the order or not? Exit order or what are you talking about? Like entry order, let's suppose buy करने का recommendation है and maybe the stock yes is up by 5% जब तक आपने देखा। देयर आर गोइंग, ये हुआ है हमारे साथ बहुत बार कि हमने एडवाइस भेजा, कस्टमर ने 2 दिन बाद देखा, राइट, और फिर वो देखे अरे यार 5% बढ़ गए। तो दो चीजें हैं, आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर मान लो हमने एडवाइस दिया 9:15 में, वो बढ़ रहा है, आप तब भी एग्जीक्यूट कर सकते हो क्योंकि हमारा टाइम फ्रेम 2 हफ्ते का है। तो ये जो शॉर्ट बर्स्ट ऑफ अप ट्रेंड है ये और कंटिन्यू होने का चांसेस बहुत हाई है, इसीलिए हम रेकमेंड कर रहे हैं। करेक्ट। तो दूसरा क्वेश्चन इज, मान लो आपने मिस कर दिया कि अरे यार हमने 5 तरीके का मैसेज बोला है बट आपने मिस करके अगले दिन देख रहे हो या परसों देख रहे हो, तो हमें एक लाइव रीबैलेंस फीचर रखें। मतलब ऑन द स्पॉट आप जनरेट न्यू कर सकते हो कि नया एक्शन दो क्योंकि मैं पुराना वाला मिस कर दिया। तो वो पूरा एआई आपके लिए, वही मैंने बोला, 35 सेकंड्स के अंदर वो चला के बता देगा हाँ ठीक है, आज का एडवाइस ये है कि आप वो बेचो मत, आप ये खरीदो इंस्टेड। गॉट इट, थैंक यू। सो एकदम क्रिस्टल क्लियर इंस्ट्रक्शंस है गाइस, अगर बोला गया है खरीदने के लिए आप खरीद लो। रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली जब भी बेचना होगा, लेट्स सपोज वो स्टॉक 10 रुपए ऊपर मूव होना था, हमने 8 रुपए मिस कर दिया, तो 2 रुपए आप कैप्चर कर लीजिए, बता देगा। देन द नेक्स्ट क्वेरी इज कि कैन यू शेयर सम केस स्टडी ऑफ योर क्लाइंट्स, द गुड वन एंड द वर्स्ट वन बोथ? Sure. I think following this we will share it out. My suggestion is for you guys, देखो ऐप डाउनलोड करना फ्री है, रिस्क प्रोफाइल असेस करना फ्री है, राइट, उसमें चैट करना फ्री है। सो यू कैन एक्चुअली चैट विद द कस्टमर सपोर्ट, आस्क देम फॉर एनी डॉक्यूमेंट, एनीथिंग दैट यू वांट। वी आर वेरी ओपन, हम स्टार्टअप है तो आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आप मांग रहे हो। Yes. Now the question is कि how long have you been in business? Yes. So this is the 6th year that we are in business. So overall, I think 3 years back, 3.5 years back, we launched our app and portal and everything. We ended up spending 2.5 years making the code to make it accurate, to make sure it's working and everything. So we've been there for almost 3.5 years, managing more than 100 crores of customers' money, more than about 70,000 plus customers who have registered with us and who are using the product. Okay. So now another question is, which is actually a very good question, कि what if we have our account in some different broker which is not partnered with you, like Fires or something? तो उस केस में क्या होगा? ओके, सो बहुत सिंपल है कि मान लो हमने आपको एडवाइस दिया है, राइट, तो एक एडवाइस में आपको अगर आपका ब्रोकर लिंक्ड नहीं है तो आप उसके बाजू में ये क्लिक कर सकते हो कि कंफर्म मैन्युअली। तो आप मैन्युअली प्राइस कंफर्म कर सकते हो ताकि हमारा सिस्टम में अपडेट हो जाएगा कि हाँ आपने ये ट्रेड लिया है इस प्राइस पे। तो अगर आप हमारे बैकएंड ब्रोकर से कर लिए तो ब्रोकर हमें बता देता है आपका इतना प्राइस पे इतना ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है। बट मान लो आपके फायर या कोई और ब्रोकर से कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट वो जो ट्रेडिंग प्राइस है, आपने कितने में खरीदा कितने में बेचा है, वो आपको हमारे ऐप में अपडेट करना पड़ेगा। तो कंफर्म मैन्युअली करके एक फीचर है जिसमें आप अपडेट करके चला सकते हो। So basically जो लोग भी मतलब like those who haven't seen the AI UI of the app and all, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बेसिकली देखिए ऐप क्या है कि आपके पास जो बाई सेल के ट्रेड्स आते हैं, रिकमेंडेशंस आते हैं व्हाट्सएप या कहीं पे भी जो अभी करेंटली आप लोग कर रहे हो, सेम चीज एक ऐप में आ रहा होगा और एक बटन होगी, उस पर क्लिक आपने किया ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। बट लेट सपोज आपका ब्रोकर अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, अगर कनेक्टेड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, ट्रेडिशनल वे फॉलो कर सकते हो कि आप उस जो रिकमेंडेशन है कि ओके ये स्टॉक बाई करना है, ये स्टॉक सेल करना है, वो आप मैनुअली एग्जीक्यूट कर दो और हमें बता दो, उस ऐप में बता दो कि ओके भाई इतने पे बाई कर लिया मैंने, इतने पे सेल कर दिया। दैट्स इट, सिंपल, इट इज प्रीटी सिंपल। जो देखिए
अगर आपका ब्रोकर कनेक्टेड है तो एक्सपीरियंस आपका इतना स्मूथ होगा कि आपके पास ट्रेड आ रहा है, आपको टाइप करके नहीं लगाना है, इट्स नोटिफिकेशन आएगा ऐप में कि ये आपके एडवाइजर के लाइक एडवाइजरी ने ये रिकमेंडेशन सजेस्ट की है, ये रिबैलेंसिंग सजेस्ट की है, आपको सिर्फ अप्रूव पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड जो सेल जो बाई ऑर्डर्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपके कैपिटल के हिसाब से लग जाएंगे, क्वांटिटी भी आपको नहीं डालनी है, कुछ भी नहीं डालना है, एवरीथिंग इज डन सो वेल. नाउ other question is कि what if I am sleeping at that time after my night shift? So guys, इसी reason I think इसीलिए तो AI बना हुआ है कि even if you are sleeping, then also there is someone who is looking at all the data points, right Vignesh ji? I think I'm correct. Yeah. इसीलिए बना ही है AI कि if you are sleeping, if you are traveling, कोई problem नहीं. Someone is there who is so intelligent कि that person उसके पास emotions का कोई biasness नहीं है. इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड थिंग जो कि हमारे ही जो हमने मॉडल डेवलप किया है, हमारा जो एनालिसिस जो हमारी स्ट्रेटजीज है उसके बेसिस पे ही इट इज गिविंग अस द रिकमेंडेशंस. ओके, सो नाउ एक क्वेश्चन है कि बट यू आर मेंशनिंग दैट यू कैन नॉट एक्सिक्यूट ऑर्डर्स ड्यू टू सेबी. तो आई थिंक इसको थोड़ा सा क्लियर करना होगा हमें ये बोलते हुए किसी गाइस आप समझिए, आपके पास अलर्ट आएगा ऐप में, आप जब यस पे क्लिक करोगे तब ऑर्डर प्लेस होगा, तो एट द एंड एक्शन आप ले रहे हो. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेबी के रूल के हिसाब से ऑर्डर तो आपने लगाया, यस पे क्लिक किया तभी ऑर्डर लगा, अगर आपने अप्रूव नहीं किया तो ऑर्डर नहीं लगेगा. सो गाइस पूरा ऑर्डर का कंट्रोल आप ही के हाथ में, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, हर पॉइंट पे आपके पास ही कंट्रोल है, एवरीथिंग. ओके, नाउ एक क्वेश्चन आ रहा है कि सपोज आई हैव सपोज बेसिकली इफ आई चेंज ब्रोकर्स इन बिटवीन, तब क्या होगा? बहुत सिंपल है, हमारा वो चैट सपोर्ट है, तो वहां पे आप बोल सकते हो ये मेरा नया ब्रोकर है, तो हम चेंज कर देंगे. आई कंटिन्यू. सिंपल, दैट्स इट, बस 1 मिनट का काम है. करेक्ट. नाउ अनदर क्वेश्चन इज हाउ मच एक्टिव पोर्टफोलियो, बेसिकली AUM की बात कर रहे हैं, आई थिंक आपने बताया बट फिर से बता देते हैं. So we have more than 100 crores of AUM. Almost 10 to 15% of our clients are giving us more than 50 lakhs per customer. So big amount of customers are putting big money because they're long term investor. उनको पता है कि मार्केट तो बढ़ने वाला है. तो आपको एक और बेनिफिट देखोगे कि ये सब फीचर्स जो है ये सिर्फ PMS में थे, AIF में थे, हम लेके आ रहे हैं कि रिटेल कस्टमर को भी ये सब फायदा मिले. नहीं तो ये सब सॉफ्टवेयर सिर्फ बड़े लोग के लिए है. अच्छा, Maurya is asking again, not clear if I'm sleeping after my night shift work. Okay, Maurya जी, मान लो आप उठते हो 3 बजे शाम को क्योंकि आपका नाइट शिफ्ट था, तो हम उस टाइम पे भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो क्योंकि हमारा ओवरऑल जो टाइम है, जो आपका इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम है, सो हम जो कॉल्स देते हैं वो ऐसे नहीं कि आज खरीदो और कल बेचो, वो जनरली 2 हफ्ते के लिए हम रखते हैं. हमारा ट्रेंड है कि जनरली 2-3 हफ्ते के अंदर वो स्टॉक वो मूवमेंट देता है. तो आप मान लो 3:30 बजे शाम को मार्केट क्लोज करने के पहले भी उठ के आपका एग्जीक्यूट कर सकते हो. ठीक है, AMO भी डाल सकते हो. AMO डाल सकते हैं आप कैसे भी. नाउ भास्कर जी इज आस्किंग कि कैन यू नेम सम कॉम्पिटिटर्स एंड हाउ इज जार्विस डिफरेंट. सो आई थिंक कॉम्पिटिटर्स में तो entire financial advisory पूरी की पूरी इंडस्ट्री है. No, I will put it this way. See, there are not competitors. Competitors, if you look at it in core AI based competition, कोई है नहीं, right? We're India's first AI based this thing. एक है small case, right? जो जिसमें छोटा छोटा वो भी बकेट बनाता है. But small case में भी you get into model portfolio issues. आप मान लो 1 महीने पहले आए कि आज आए कि कल आए, वो हर 3 महीने या 6 महीने में वो रीबैलेंस करते हैं, राइट. एंड अगर आप पिछले के ट्रेंड देखोगे तो आई थिंक दे वर -20%, जब म्यूचुअल फंड्स भी -20% गए हैं सब लोग, तो दिस इज ऑल्सो दैट थिंग. Savarth is also there, but they are doing, I think there is a human intervention in their program, so that is the problem with Savarth, while we are purely. There is one more interesting question coming up कि suppose हमने 1 लाख ट्रेड किया, 1 लाख इन्वेस्ट किया, and then after some time we withdraw the money, and then वापस से if I am planning कि भाई 10 days बाद फिर से इन्वेस्ट करना है, तो will I have to pay the fees again? No. या कैसा है? No. Whatever fees you pay for, it's like a subscription that you paid for 6 months. तो उसके बाद आपका वो पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करना है, रीसेट करना है, आपको मान लो सिर्फ 50,000 डालना है वापस, तो वो सब हमारे चैट के फंक्शनैलिटी से हम हेल्प करेंगे आपको करने के लिए. Now there is a question कि suppose like order Jarvis ऐप से लगेगा या ब्रोकर के अकाउंट से. So guys देखिए, ये पॉइंट को मैं क्लियर करता हूँ. ऑर्डर आपके डीमैट अकाउंट में ही लगेगा. जार्विस से जो आप बाई सेल बटन पे क्लिक करते हो कि ये टाइप करते हो कि रिलायंस
देन आप क्वांटिटी भरते हो, बाय, लिमिट ऑर्डर, डिलीवरी, ये सब जो सेलेक्ट करते हो, वो सारी चीजें जारविस अपने आप करके 1 क्लिक में आपका ऑर्डर लगा दे रहा होगा ब्रोकर के अकाउंट में। बट आप चाहो तो मैनुअली भी ये काम कर सकते हो। आप खुद चाहो, सपोज आप चाहते हो कि भाई मुझे पता होना चाहिए, मैं टाइप करूंगा स्टॉक का नाम, तो आप चाहो तो खुद मैनुअली देख करके, सपोज आपके पास एक लिस्ट दे दी गई रहेगी कि ओके आपको रिलायंस के 7 शेयर्स बाई करने हैं, 5 शेयर्स अशोक लीलैंड के बाद बाई करने हैं, 10 शेयर्स टाइटन के बाई करने हैं, ऐसा कुछ आपको लिस्ट दी जाएगी। तो आप चाहो तो मैनुअली उसको बाई कर सकते हो, या फिर 1 क्लिक में आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। बोथ द ऑप्शंस आर पॉसिबल। Now, how much minimum capital is required? So this is 30,000 rupees. I think हमने बताया है, but 30 to 50,000. 50,000 is the ideal capital suggested because ऐसे हैं, 30,000 is the minimum capital. Subscription कितने का है? I think again फिर से this is a repeated question, so I will not bother Vignesh ji again. So guys, फीस जो है एक बार में 6 महीने की फीस चार्ज हो रही है, बट पूरे साल में आपने देखा ना कि सपोज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो रफली साल भर में आप 2,500 के आसपास दियोगे प्लस जीएसटी, जो कि लगभग मान लेते हैं 3,000। तो इट इज रफली अराउंड 200 रुपीज, 150-200 रुपए पर मंथ के आसपास हो रहा है। सो दिस इज द फीस, बट 6 महीने की फीस वी आर चार्जिंग अप फ्रंट बिकॉज दिस इज अ पोर्टफोलियो बेस्ड प्रोडक्ट गाइस, दिस इज नॉट एन इंट्राडे ट्रेडिंग प्रोडक्ट, राइट? Now I can modify before I click execution recommendations by Jarvis. This is a actually interesting question. He is asking that if Jarvis has given some recommendations, and if I want to basically modify something, let's suppose कोई एक particular stock नहीं लेना चाहूँ मैं, या maybe something किसी में quantity 1-2 quantity बढ़ाना हो, so can I modify those? Yes. So अभी एक होता है कि हमने जो एडवाइस दिया है और उसके मुताबिक जो रिटर्न्स आता है। नाउ कोई कस्टमर को अगर कंफर्टेबल नहीं है कि नहीं नहीं ये स्टॉक में मुझे भरोसा नहीं है, मुझे नहीं डालना है, खुद का जो चलाना है, हम वही बोलते हैं कि पहले तो ह्यूमन बायस है वो, तो वो मत करो। बट अगर आपको करना ही है, आप मॉडिफाई कर सकते हो। और उसके बाद एक फंक्शन आता है आर्काइव करके, कि आप हटा देते हो कि हाँ ठीक है मैंने मैन्युअली कंफर्म कर दिया कि मैंने वो कर लिया। तो मान लो उस ट्रेड का कुछ भी प्रॉफिट और लॉस हो, जो एक्शन आपने नहीं लिया है, तो वो आपको नहीं मिलेगा, बट बाकी सब तो चलता रहेगा। तो आप मॉडिफाई कर सकते हो, बट हम रेकमेंड नहीं करते कोई कस्टमर को करने के लिए। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन कि ये इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए कैसे इन्वेस्ट करना है। सो गाइस इसके बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए गाइस, जो लोगों को भी इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर शेयर्ड है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिए, हमारी टीम आपको प्रॉपरली असिस्ट करेगी पूरा अकाउंट बनाने में। अगर आपने ऐप डायरेक्टली भी डाउनलोड कर लिया, देन ऑल्सो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, सो दैट हमारी टीम आपको एक बेसिक ऑनबोर्डिंग दे पाए। बिकॉज प्रेजेंटेशन देने के बाद भी What we believe is कि आपको एक इंडिविजुअल सपोर्ट की जरूरत है, बिकॉज हर पर्सन की रिक्वायरमेंट्स, रिस्क एपेटाइट एंड कैपिटल सब कुछ अलग अलग होता है। सो गाइस इट्स ऑलवेज बेटर टू गेट इन टच विथ आवर टीम। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो टेलीग्राम चैनल बाकी जगहों पे शेयर्ड है, अगेन मैं यहाँ पे भी चैट में भी लिख देता हूँ, इट इज 9667413007। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप पिंग करिए एंड हमारी टीम आपको विद इन 48 आवर्स आपसे हो सकता है तुरंत, हो सकता है जैसे अभी हॉलीडे चल रही है तो मंडे तक, बट विद इन 48 आवर्स गाइस आपको टीम प्रॉपरली असिस्ट करेगी। अगर आपने ऐप डाउनलोड भी कर लिया है, कूपन कोड वगैरह जो भी चीजें हैं, डोंट वरी अबाउट इट, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए और हम लोग आपको प्रॉपरली असिस्ट करेंगे। आप इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं, देन ऑल्सो इट्स ऑलवेज बेटर कि एक बार आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए, सो दैट वी कैन असिस्ट यू प्रॉपरली। ऐप का नेम है जारविस इन्वेस्ट। अदरवाइज गाइस ये सारी लिंक, ऐप की लिंक, वेबसाइट के लिंक, ये सब हम लोग अभी इस सेशन के बाद सबको शेयर कर देंगे। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इज एआई एंड एल्गो डिफरेंट? एल्गो और एआई में क्या डिफरेंस है? दिस इज एक्चुअली अ $1 million क्वेश्चन एक्चुअली। दिस इज गुड क्वेश्चन, नाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, है ना? अभी बेस्ट पार्ट इज आप सब ट्रेडिंग करते हो, राइट? मेजॉरिटी ऑफ देम, सबको पता है कि एल्गो बहुत सिंपल है, मैंने अपवर्ड बायस किया, डाउनवर्ड बायस किया, राइट? सो एल्गो पिक्स अप अ ट्रेंड, या वो 3 सिचुएशन लेता है, या तो मार्केट ऊपर जा रहा है, या तो मार्केट साइडवेज जा रहा है, या तो मार्केट नीचे जा रहा है। इन्हीं 3 का कॉम्बिनेशन एल्गो करता है, राइट? सो बट एक एल्गो जो अपवर्ड मार्केट में अच्छा करता है वो डाउनवर्ड में उतना अच्छा नहीं करता, जो साइडवेज में अच्छा करता है वो अपवर्ड डाउनवर्ड में उतना अच्छा नहीं करता। तो वो एक प्रॉब्लम आता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा, एल्गो यूजुअली इज हाई फ्रीक्वेंसी। अगर आप देखोगे कि वो सुबह अंदर जाके शाम को निकलेगा, 1-2 दिन में निकल जाएगा, एंड वो लॉन्ग टर्म के लिए ब्रोकरेज बहुत खाता है बीच में, राइट? बट व्हाट एआई इज डूइंग इज, बिकॉज वो इतना डेटा उठा के आगे देख पा रहा है, वो देख पा रहा है कि एक तो कि ये ट्रेंड अपवर्ड है, साइडवेज है, डाउनवर्ड्स है, वो अपने आप समझ पा रहा है।
अपने आप वो कॉल्स ले पा रहे हैं, ठीक है ये डाउनवर्ड ट्रेंड है तो ये सब बेचो, या ये अपवर्ड ट्रेंड है तो ये सब खरीदो। दूसरा पॉइंट इज, हमारे एआई में एक बेनिफिट है कि उसमें ऑलमोस्ट 5-6 साल का लर्निंग है अंदर। तो अभी मान लो मार्केट में कोई भी नया एआई भी आता है, उनके लिए भी 2-3 साल लगेगा टू कैच अप टू द स्पीड जो हमने डेवलपमेंट्स की है। एंड लास्टली हमारे कॉल्स जो है वो मंथली, लाइक 2 बार कुछ, लाइक 2 वीक्स में एक बार कुछ एडजस्टमेंट्स और ये सब आएंगे, रिस्क मैनेजमेंट कॉल्स या रीबैलेंस कॉल्स। तो आइडियली हमारा ब्रोकरेज भी उतना नहीं लगता जितना ये एल्गोज में ज्यादा लग के बर्न हो जाता है। तो आई थिंक कुछ सॉफ्टवेयर है जो आपको एल्गोज में दिखाएगा विद ब्रोकरेज एंड विदाउट ब्रोकरेज, राइट। तो एल्गोज में अगर आप देखोगे प्रॉफिटेबल है 8%, विदाउट ब्रोकरेज, विद ब्रोकरेज किया -20% हो गया। एब्सोल्युटली, इतना ज्यादा आपने फेस किया होगा। नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन व्हिच इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग। तो whether this AI will keep on evolving and learning during the market, या whether the code and things are fixed? Oh, it will keep on learning. So that's what we said. That is the thing. 5 साल एक्सपीरियंस हो चुका है। The thing is कि ये AI एक आदमी है, आप समझिए, जिसके पास 5 साल एक्सपीरियंस भी आ चुका है। He has the talent plus he has experience. Correct. So in fact, best part about it is कि हम और अपग्रेड्स भी करते रहेंगे जो पाइपलाइन में आता रहेगा, राइट। सो एआई और एफिशिएंट बनेगा और डेटा खींचेगा और हम डेटा फीड करेंगे। सो इट विल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। एआई कभी वीक नहीं होने वाला है। या गॉट इट। नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन कि गाइस यहाँ पे मतलब एक क्वेश्चन आ रहा है कि फंड्स क्या जारवेस में पेमेंट करने होंगे या अपने डीमैट अकाउंट में? दिस इज ऑलरेडी शायद आंसर किया जा चुका है, बट आई थिंक एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं व्यूअर्स के लिए। तो क्वेश्चन ये है गाइस, देखिए हम लोग आपके पैसे को मैनेज नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एडवाइस दे रहे हैं, आपको वो एडवाइस एग्जीक्यूट करनी है। तो आपको पैसे भी अपने डीमैट अकाउंट में डालने हैं, आपके स्टॉक्स भी आपके ही डीमैट अकाउंट में आएंगे। जारवेस इज जस्ट लाइक, आप ये समझ सकते हैं कि एक टेलीग्राम चैनल है जिसपे बताया जा रहा है रिलायंस बाई कर लो, अशोक लीलैंड सेल कर, तो समथिंग लाइक दैट आप ये मान लो। एंड उस टेलीग्राम चैनल में एक आपको बटन भी दी जा रही है जिसपे आपने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जा रहा है, समथिंग लाइक दैट। आप ऐसा सोचो, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं। नाउ somebody is asking, fees will remain same if any number of amount like invested, whether 30K or 30 lakh. So fees के बारे में गाइस मैं बता दूं, fees is a percentage based model, मतलब 2.5% per annum of the assets under management is the fees। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो आप 1 लाख का 2.5% एक साल में देंगे। अगर आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया तो 10 लाख का 2.5% देंगे, बिकॉज आपको जो रिकमेंडेशन आ रहे होंगे उसमें भी तो चीजें हो रही होंगी। आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया, अगर आपने 1 CR इन्वेस्ट किया तो अगेन आपकी फीस साल भर में आपने उतना दिया होगा। बट गाइस अगेन 1 CR आपको सोचने में लगेगा यार 2.5 लाख की फीस, बट जो 1 CR है जिसका पोर्टफोलियो साइज वो कमाने भी तो वाला है 30-40 लाख। सो दैट इज हाउ थिंग्स आर। एंड फीस की पेमेंट विल बी पर हाफ ईयरली, मतलब 6 महीने की फीस एक साथ, देन 6 महीने बाद आपसे पेमेंट मांगी जाएगी। अप टू 6 मंथ्स ट्रेड्स आते रहेंगे, एडवाइसेस आते रहेंगे। नाउ सर जारवेस से ज़ेरोधा अकाउंट लिंक हो जाएगा क्या? ऑब्वियसली ऑल द ब्रोकर्स आर कैन गेट लिंक्ड। नाउ समबडी इज सेइंग इट इज वेरी हाई चार्जेस। अब एक बार हम लोग एक चार्जेस को ना थोड़ा कंपेयर करते हैं, हाई एंड लो चार्जेस को एक बार थोड़ा सा कंपेयर। एक्चुअली लाइक गाइस मतलब मेरे हिसाब से विघ्नेश जी बेटर होगा कि हम दोनों के पास एक्सपीरियंस है, एक बार हम लोग अपने ही एक्सपीरियंसेस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे लोग यहाँ पे बोल रहे हैं इट इज वेरी हाई चार्जेस, मैं आपको जैसे विघ्नेश जी मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ। like I am also running a lot of things, बहुत चीजें चल रही हैं, बहुत ढेर सारी, there are lot of advisory companies in the market जो आपसे पर मंथ 5,000 10,000 की फीस भी लेती हैं। and there is no advisory company in the market जो आपको 200 रुपए, सपोज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो आपसे 200 रुपए ले रही है। there is no advisory company in the market कि महीने भर का सिर्फ 200 रुपए में आपको पूरे ट्रेड दे रही है, सारी चीजें दे रही है। तो गाइस अगर आप फीस के हिसाब से देखें, मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ, हम लोग लेट्स कंपेयर 3 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स, 1 लाख कंपेयर करते हैं, देन 10 लाख एंड 1 CR, तीनों पे कंपैरिजन करते हैं। लेट्स ट्राई टू सी क्या ये फीस ज्यादा है या कम है। आप विघ्नेश जी जैसे मैं आपको बताता हूँ, सपोज मान लेते हैं 1 लाख रुपीस है, ऑब्वियसली उसमें फीस होगी मैक्सिमम 200 के आसपास पर मंथ, ऐसा सब समथिंग लाइक दैट आ रही है एवरेज फीस। अब आप बताइए मुझे, लेट्स सपोज या मेरा भी एक्सपीरियंस जो ऐसा है, इफ समबडी इज गिविंग यू रिकमेंडेशंस, मुझे नहीं लगता वो 1,000-1,500 रुपए पर मंथ से कम चार्ज करेगा। एनीवन, I don't think there is anyone in the market. So correct. So most Right. people will go for 5,000 rupees. That's the average fees that they charge. Yes, absolutely. And then वही एक problem. And now दूसरा पॉइंट जो मैं देख रहा हूँ, लाइक जो
किसी ने बोला है कि मैं 20-30 lakhs बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 10-15% मेरा कस्टमर्स जो भी है वो ऑलमोस्ट 50 lakhs के ऊपर ही दे रहे हैं आज के दिन, एंड वो अभी भी फीस इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि उनका रिटर्न जो पास्ट में है दैट्स पेइंग इट ऑफ। एब्सोल्युटली। दूसरा पॉइंट इज, अगर आप 50 लाख 1 करोड़ रुपए वैसे आप देखोगे तो आप कोई भी छोटा मोटा एडवाइस सुनना नहीं चाहोगे 1 करोड़ रुपए के लिए। आपका रिस्क उतना हाई है कि आप 1 करोड़ डाल दिया, मान लो 80 लाख हो गया, 20% नीचे हुआ तो, राइट? सो आप 20 लाख रुपए कैसे लूज कर सकते हो? तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ गुड एडवाइजर। अभी यही चीज अगर आप देखोगे, इसीलिए 50 लाख और 1 करोड़ रुपए के लिए पीएमएस वाले लाइसेंसेज है बहुत सारे लोग, उनका भी फीस अराउंड 4% है, 3 to 4% है परफॉर्मेंस फीस और वो सब लिंक करके। सो अगर वैसे देखोगे, अगर आपको ये ऐसा होता है, राइट, अगर अगर बिल्डिंग वीक है तो आप अपना पैसा नहीं डालना चाहोगे अंदर, तो वैसे एडवाइस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसीलिए अगर आप 20 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, बहुत सारे कस्टमर्स है जो हमें 1 करोड़ रुपए देके हम मैनेज कर रहे हैं एंड टू एंड उनके लिए, है ना, बट अगेन थ्रू आर्म्स लेंथ डिस्टेंस, वो उनके ब्रोकर के साथ हमने टाई अप करके बैक एंड में इंस्टॉल किया पूरा। नाउ लेट्स सपोज मैं आपको सेम चीज, सो गाइस द थिंग इज, एक बार हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। सपोज आपने 1 लाख रुपीस दिया, आप साल भर में 2,500 रुपए दिए होगे प्लस जीएसटी, मान लेते हैं 3,000 दिए होगे, आप उससे कम ही दिए होगे, लेट्स अज्यूम। मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, मार्केट में आप जाओगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप पहली महीने में 3,000 से ज्यादा पे कर दोगे। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, तो आप पिछले एक महीने में जो भी आपने फीस पेमेंट की है आईटीएन ट्रेडर या ऑर्किड, जहां पे भी फीस पे की है आपने, आप एक बार कैलकुलेट करिए कितनी फीस पे की है आपने। तो गाइस वही चीज है, मतलब आप खुद कैलकुलेट कर रहे होगे कि जितना यहाँ पे साल भर की फीस है उससे एटलीस्ट डबल ट्रिपल तो आपने महीने भर में पे किया हुआ है ऑलरेडी। सो आपको अगर ये फीस दी लग रही है तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई है। नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन कमिंग कि देयर आर टू क्वेश्चंस बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है? देखिए, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट के लिए तो इन्फिनिटी है, लाइक आपके पास जितने पैसे आप सब करिए, कोई लिमिट नहीं है सच। देन दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि सर अगर किसी का कैपिटल 20 लाख है एंड किसी का 30K है, तो दोनों का रिस्क एपेटाइट, रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ अलग अलग होगा, तो कैसे स्टॉक सजेस्ट हो रहा है? आई थिंक ये क्वेश्चन आपने आंसर किया है, बट फिर भी लेट्स डिस्कस तो इट। मान लो किसी के पास 30,000 डाल रहे हैं, राइट, आप 10 रिलायंस के स्टॉक खरीदोगे तो हो गया वो 30,000, करेक्ट, वो 27,000 25,000 उधर ही खत्म हो गया और कुछ है ही नहीं लिक्विडिटी, अपॉर्चुनिटी कम है वो पैसा बनाने के लिए, राइट। कोई मान लो 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए डाल रहे हैं, तो हमारा वो जो मिक्स होता है, जो बास्केट हम सजेस्ट करते हैं, वो भी चेंज होता है। ऐसा नहीं कि आप दोनों को एक ही कॉल्स आ रहा है, जो रिस्क मैनेजमेंट कॉल्स है वो भी चेंज हो जाता है, लिक्विडिटी जो आता है वो भी बढ़ जाता है, ओवरऑल रिटर्न्स में भी फर्क पड़ता है कस्टमर्स के लिए। सो दैट इज द रीजन, ये जितना ज्यादा पैसा है उतना और एफिशिएंट बनता रहता है। मतलब कोई 30,000 डालता है और 1 लाख डालता है, तो 1 लाख का पोर्टफोलियो 30,000 से ज्यादा परफॉर्मेंस करता है, बट 30,000 भी मार्केट को बीट कर रहा है, इंडेक्स को बीट कर रहा है, राइट। 1 लाख रुपए 30,000 वाला पोर्टफोलियो को जनरली बीट करता है जब हम पीछे देखते हैं। तो वैसे जैसे और पैसा आ जाता है और लिक्विडिटी आता है और एआई और एफिशिएंटली काम कर सकता है और अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि अभी पैसा ज्यादा है। तो मान लो 10 अपॉर्चुनिटी है, पहले वो सिर्फ 2 में इन्वेस्ट करता था, अभी वो 5-6 में इन्वेस्ट करेगा, तो वैसे फायदा मिलता है। नाउ इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि आई एम पेइंग ऐसे। सी गाइस, आप जब भी जो भी पेमेंट वगैरह कर रहे हो, एक बार इट्स ऑलवेज बेटर टू डिस्कस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर, हम लोग उसके बाद चीजें टेक फॉरवर्ड कर लेंगे। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम investment equity baskets that are available in apps like Grow और small cases या जो भी है? करेक्ट करेक्ट। सो सिंस वी आर एन एआई बेस्ड कंपनी, तो हम भी बास्केट्स हैं, बट ग्रो का एआई अभी चालू हुआ होगा उनका जो है, एंड हमारा लाइक तब भी वहां पे एक मैनुअल इंटरवेंशन होता ही है, जो पहले दूसरा कंपटीशन का भी नाम देख रहा था, देयर इज अ मैनुअल इंटरवेंशन। जैसे ये वाला प्रोडक्ट जो है, जो पहले 5 साल का एक्सपीरियंस है एआई का, दूसरा जो एक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, तीसरा इसमें कोई ह्यूमन बीइंग इमोशन है नहीं, कि जब से आप अंदर आके रिस्क प्रोफाइल बोलते हो और जब तक आपका एंड टू एंड रिटर्न्स आ रहा है ओवर द पीरियड ऑफ 6 months, 1 year, 1.5 years, everything is AI driven. So the way we look at it is human biases, model portfolios, ये सब इश्यूज है इन बाकी बास्केट्स, एंड ये सब हमारे लिए एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। मैं एक और पॉइंट इस पे ऐड करना चाहूंगा, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। देखिए गाइस, लेट सपोज आपने कहीं पे भी किसी और फंड मैनेजर के साथ आप मैनेज कर रहे हैं, आप वो फंड मैनेजर मोस्ट केसेस में क्या करता है, एक पोर्टफोलियो बनाता है फॉर एवरीवन देयर इज अ सिंगल पोर्टफोलियो।
Now let's suppose there is a stock named as ICICI Bajaj Finance, let's suppose, in the portfolio, and yesterday the fund manager decided कि let's book partial profit in Bajaj Finance because बहुत ज्यादा रैली हो गई है। तो वो क्या करेगा, वो आपको सेल का अलर्ट दे देगा कि भाई बजाज फाइनेंस में सेल कर देना है। अब सपोज ये काम, सेल का अलर्ट सपोज मंडे को आने वाला है। अब लेट सपोज मैं आज या सपोज फ्राइडे को मैंने पोर्टफोलियो बनाया, मैंने फ्राइडे को बजाज फाइनेंस वगैरह बाई कर लिया। अब लेट सपोज मंडे को बजाज फाइनेंस 1% डाउन है, फंड मैनेजर ने सारे लोगों को रिकमेंडेशन दिया कि बजाज फाइनेंस सेल कर दो, प्रॉफिट बुक कर लो। बट वो तो ये अज्यूम करते हुए दिया कि भाई जब मैंने बाई किया था तो उस समय तो 5,000 का था बजाज फाइनेंस, नाउ इट इज ऑफ 8,000, तो हम लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। बट फॉर यू ऐसा हो सकता है कि बजाज फाइनेंस तो आपने बाई किया 7,800 में, आज 7,600 का चल रहा है, तो आप लॉस फेस कर रहे हो। तो ये होता है इन एवरी इक्विटी बास्केट, इन एवरीवेयर जहां पे एक मैनुअल पर्सन फंड मैनेज कर रहा होता है। दिस हैपेंस एवरीवेयर, बट हियर दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ गाइस। आपको जो भी रिकमेंडेशंस आ रहे हैं, इट इज कस्टमाइज्ड, मतलब इट हैज अ कोर पार्ट, जो भी चीजें आ रही है, बट कई सारा चीज आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आप ही जो क्वेश्चन डिसाइड किए हैं, क्वेश्चन के आंसर किए, उसके जो रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड्स मिलेंगे। दिस इज क्लियर। नाउ समीर चौधरी जी का एक क्वेश्चन आ रहा है कि मैं बेसिकली इनका क्वेश्चन आ रहा है कि लेट सपोज मैं 20 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर दिया, तो आप एग्जैक्टली बताएंगे कि रिलायंस के कितने स्टॉक लेना है, अशोक लीलैंड के कितने स्टॉक लेना है। मैं क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से फ्रेम कर देता हूँ। तो इनका क्वेश्चन बेसिकली ये है कि सपोज मैं 20 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आप क्या एक एक करके बताएंगे कि भाई ये 10 स्टॉक्स हैं, इस स्टॉक में इतनी क्वांटिटी, इस स्टॉक में इतनी क्वांटिटी, इतने प्राइस पे, क्या आप ये बताएंगे या नहीं बताएंगे? तो गाइस इसको मैं ही आंसर करता हूँ। देखिए डेफिनेटली हम लोग ये चीज बताएंगे, यही बताएंगे एक्चुअली। ऐप में मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूं। मैं एक बार आपको लाइक एक सैंपल, एक क्लाइंट का सैंपल मैं दिखाता हूं कि कैसा आता है। मैं आपको जस्ट स्क्रीन तो शेयर नहीं कर रहा हूं, मैं अपना मोबाइल का स्क्रीनशॉट ही शेयर करूंगा। जैसे ये आई थिंक समथिंग लाइक दिस, ये मोबाइल दिख रहा है, समथिंग लाइक दिस ऐसा अलर्ट आया होगा कि एजिस लॉजिस्टिक्स के 7 शेयर सेल कर दो, समथिंग लाइक दिस। तो उसी तरीके से आपको बताया गया रहेगा कि रिलायंस के 25 शेयर्स बाई कर लीजिए, टाटा मोटर्स के 110 शेयर्स बाई कर लीजिए, हिंडाल्को के 15 शेयर्स बाई कर लीजिए, और आपने जो पहले टीसीएस के बाई किया था वो आप बेच दीजिए। समथिंग लाइक दिस चल रहा होगा। ओके ओके, सो सबके लिए कस्टमाइज्ड है? यस एब्सोल्युटली इट इज कस्टमाइज्ड। व्हाट इफ आई हैव 2 डिफरेंट अकाउंट, इज देयर एनी वे टू मर्ज द ब्रोकर्स? तो विग्नेश जी, maybe if you can answer this, कि if I have 2 demat accounts, is there any way to merge these? तो अगर आपके पास 2 डीमैट अकाउंट है तो आप एक अकाउंट में आपका ट्रेडिंग करोगे, राइट, इन योर एंटायर थिंग। सो लाइक आइडियली आपका जो भी एडवाइस दे रहे हैं आपको एक अकाउंट में आपको करना पड़ेगा, राइट। तो आप वही अकाउंट आप जारवेस में अपडेट कर दो, मुझे ये जेरोदा में करना है, अपस्टॉक्स में करना है, जिसमें भी ब्रोकरेज कम है, एंड एसेंशियली वो चलेगा आगे। आई थिंक मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस तो आंसर हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस और हैं। 30K वाला टाटा मोटर्स, अच्छा नाउ समबडी इज आस्किंग कि लेट्स सपोज 30K किसी का इन्वेस्टमेंट है, तो वो तो 400 शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स बाई नहीं कर पाएगा। गाइस मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 30K है तो आपको आया होगा कि 3 शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स बाई करिए, या कुछ ऐसा आया होगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 3 नहीं आएगा, हो सकता है 10 आए, हो सकता है टाटा मोटर्स ना आए, कोई और आए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज जिसका 30 लाख है, अगर सपोज उसको हो सकता है उसकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, सपोज वो सेफ खेलने वाला है और इसलिए उसको टाटा मोटर्स रिकमेंड किया गया। सपोज आप रिस्क लेने वाले हो, आपको क्या पता टाटा मोटर्स बोला ही नहीं जाए, आपको कोई और दूसरा स्टॉक बोला जाए। तो स्टॉक भी चेंज हो सकता है, क्वांटिटी भी चेंज हो सकती है, और परसेंटेज भी चेंज हो सकता है। सेम स्टॉक किसी के पोर्टफोलियो में 5% का एलोकेशन रख सकता है, किसी और के पोर्टफोलियो में जस्ट 2% रख सकता है, जस्ट बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट। नाउ there is another question कि 10 lakh amount would be proper for proper risk diversification, या what is your suggestion? So guys, आप जो भी सजेशन है ऐसे कस्टम, लेट्स, बिकॉज ये वेबिनार एक जनरल है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब कस्टमाइज्ड अप्रोच दे रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारी टीम के व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए। वी विल प्रोवाइड यू प्रॉपर सपोर्ट कि आपको कैसे डिप्लॉय करना है, पैसे क्या है एग्जैक्टली। नाउ क्वेश्चन आ रहा है कि ऑल द फंड्स विल बी रिकमेंडेड इन इक्विटी सेगमेंट, राइट, इक्विटी सेगमेंट और दूसरे सेगमेंट्स। तो आई थिंक इट इज एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज इससे हमारी वो जो 2 स्ट्रैटेजीज हैं उनके ऊपर एक बार अगेन थोड़ी सी लाइट शेड हो जाएगी। Yeah. So
या सो बेसिकली वी हैव अ कंप्लीट इक्विटी स्ट्रेटजी जिसमें सिर्फ इक्विटी सेगमेंट में होगा, बट अगर मान लो आपने एसेट एलोकेशन चूज किया है तो उसमें गोल्ड, लिक्विड बीज और इक्विटी तीनों के बीच में वो हेज होता रहेगा। तो इट विल ऑलवेज असाइन एक परसेंटेज टू गोल्ड, परसेंटेज टू लिक्विड बीज एंड परसेंटेज टू इक्विटी। तो उसमें रिस्क थोड़ा मैनेज हो जाता है, रिटर्न पे भी थोड़ा इम्पैक्ट दिखता है, बट overall we recommend equity segment strategy. Most of our customers prefer that because the Yeah, but it's like कि if you are, let's suppose मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, सपोज आप रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से वेरी एग्रेसिव हो एंड यू गो एंड सेलेक्ट द एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी, तो स्ट्रेटजी है ही नहीं आपके लिए। तो दो स्ट्रेटजीज हैं, एक फुल शेयर्स वाली इक्विटी वाली एंड एक स्ट्रेटजी है जिसमें इक्विटी एस गोल्ड एंड लिक्विड बीस इज बेसिकली कैश, एक तरह से मान लीजिए इट इज बेसिकली कैश, कि अगर आपको विड्रॉ करना हुआ भाई तो कोरोना का क्रैश चल रहा है या फिर इन्फ्लेशन का क्रैश चल रहा है, सो यू कैन विड्रॉ सम पार्ट, सो इट इज बेसिकली दैट। तो गाइस देखिए, इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट। अगेन इसी के लिए हम लोग आपको बार बार कह रहे हैं कि प्लीज डिस्कस विथ आवर व्हाट्सएप नंबर, ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर। हम लोग आपको प्रॉपर्ली बताएंगे कि कैसे ऑनबोर्ड करना है ऐप में एंड एवरीथिंग, एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन सब कुछ करेंगे। नाउ पीपल आर आस्किंग इक्विटी और मल्टी एसेट व्हिच स्ट्रेटजी इज बेटर। सो गाइस देखिए, बेटर इज आई थिंक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, क्योंकि देखिए बेटर किसी के लिए बेटर मतलब हो सकता है कि जो ज्यादा रिटर्न दे, किसी के लिए बेटर मतलब हो सकता है जो सेफ्टी प्रोवाइड करे। आई थिंक दिस इज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन विघ्नेश जी, राइट? या एब्सोल्युटली। तो ऐसे है कि अभी जो 6-7 महीने के लिए मार्केट डाउन जा रहा था तो एसेट एलोकेशन में गोल्ड का प्राइस ऊपर जा रहा था, सो देन वो नेट नेट पोर्टफोलियो हेज्ड था। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि अरे नीचे जा रहा है मार्केट में, इन्वेस्ट और करूंगा ताकि जब ऊपर जाएगा मुझे और मिलेगा। तो वो लोग कंप्लीट इक्विटी में थे, उन्होंने बोला ठीक है मार्केट नीचे जा रहा है तो क्या, मैं और इन्वेस्ट करके और जब ऊपर बाउंस बैक आएगा। सो आइडियली इट इज वेरी स्पेसिफिक टू दैट पर्सन दैट आर यू ओके विद फ्लक्चुएशंस, आर यू वेटिंग फॉर द लॉन्ग टर्म रिटर्न, कि आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न आएगा उसके लिए वेट करना है, कि आपको शॉर्ट टर्म में भी वो फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए उसके लिए आप। Absolutely, absolutely correct. So it depends on your risk appetite or and your needs. Suppose कोई person है who is very aggressive, but after 1 year, suppose he has to go to for higher studies abroad, and his aim is कि भाई 24 लाख मैंने या 25 लाख डाला है, 25 लाख से कम ना हो, बढ़ जाए ठीक है, नहीं तो नहीं भी बढ़ता है तो भी चलेगा। Suppose his aim is this, तो उसके हिसाब से even if he is aggressive or not, उसकी needs is different. So सबकी like it depends on your needs and risk appetite. Now यहाँ पे क्वेश्चन है कि देयर इज वन क्वेश्चन कि सपोज हम लोग 1 लाख रुपीज डालते हैं, देन मंथली कितना रिटर्न मिलेगा। सो गाइस मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए दिस इज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। अब अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वीकली या मंथली कितना रिटर्न मिलेगा, तो आई थिंक दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म टू आस्क दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट है मिनिमम डिजाइन किया गया है कि यार मिनिमम आप 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसके हिसाब से दिस इज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट गाइस, आप समझिए। ट्रेडिंग इज डिफरेंट थिंग, कॉल पुट ऑप्शन बाई करना, निफ्टी बैंक निफ्टी, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। और मैं आपको एक सिंपल, मैंने आपको ये लाइन बोली है, मैं वापस से रिपीट करता हूँ। You must be knowing Mr. Radhakrishnan Damani, the founder of DMart and the mentor of Mr. Rakesh Jhunjhunwala ji. So उनका एक डायलॉग था कि 99% of my wealth is created through investment. जो इतने अमीर हुए हैं उसका 99% is created through investment. And that one and in order to create this investment wealth, 1% came through trading. तो आपको बेसिकली करना क्या होता है, ट्रेड से जो भी प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं वो प्रॉफिट को आप इन्वेस्ट कर रहे होते हो लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर मे बी आप सैलरी या फिर व्हाटएवर जो भी आपका है। सी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, दोनों थिंग्स शुड गो हैंड इन हैंड, और मे बी डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट। जैसे अभी राकेश झुनझुनवाला जी की बात करें तो उनका ही था कि ही सेड कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, वहां से जो भी प्रॉफिट आता है मैं इन्वेस्टमेंट में डालता हूँ, अदरवाइज मेरी सैलरी थोड़ी ना है कि मैं कहाँ से डालूंगा प्रॉफिट्स इन्वेस्टमेंट में। सो दैट इज व्हाट ही यूज्ड टू डू। तो आप लोग भी सेम चीज कर सकते हैं कि आपके पास अगर कैश है, यू कैन गो विद सम इन्वेस्टमेंट कॉर्पस, आप ट्रेड के प्रॉफिट को भी स्लोली स्लोली डाल सकते हो। मंथली भी आपको अगर माने कि अच्छा ठीक है अभी 50,000 डालना है, ट्राई करना है, सपोज इफ यू हैव 10 लाख रुपीज कैपिटल, आप ये भी कर सकते हो कि 50,000 रुपीज डालिए, ट्राई करिए। अगर आपको पसंद आता है 1 महीने बाद 1 लाख डालिए, फिर आपको और पसंद आता है 2 लाख डालिए, धीरे धीरे इवेंचुअली 10 लाख कर लीजिए, और मे बी 1 गो में 10 लाख करिए, इट इज अप टू यू। सो ये है। नाउ देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आई थिंक हमें क्लियर करना चाहिए। देखिए देयर इज दिस क्वेश्चन कि सम म्यूचुअल फंड आल्सो हैव वेरी हाई परफॉर्मेंस लाइक 50 to 100%, प्लीज कमेंट एंड गिव योर व्यू। मैं पता है लाइक
आई वुड वांट मिस्टर विघ्नेश जी, पहले आप बताइए, देन मैं अपने भी इस पे व्यूज दूंगा। सी दिस टाइप ऑफ थिंग, मतलब मुझे थोड़ा हंसी आती है ये क्वेश्चंस में, बट गाइस ये करना चाहिए क्लियर। आई मीन हम सब मार्केट में बहुत इंटरेस्टेड है, राइट? सबके पास मनी कंट्रोल है, सबके पास इकोनॉमिक टाइम्स है। सीए 3 साल का सीएजीआर देख लो किसी का भी, राइट? इट्स जनरली 25 फॉर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड। अभी वो बेस्ट भी हर हर साल वो बेस्ट का बेस्ट नहीं रहता है, वो कभी नीचे वो डूबता है, कोई और बेस्ट होता है। सो 50 to 100% तो मुझे कभी दिखा नहीं आज तक कोई म्यूचुअल फंड है तो सब लोग उस पे ही भाग जाते हैं। ये बट क्लिक लगता है मुझे ज्यादा कि आप ये बोलो क्लिक करेंगे सी ताकि। मैं आपको बताता हूँ, सी 50 to 100% मैं बताता हूँ कौन से म्यूचुअल फंड देते हैं और कब देते हैं। देखिए गाइस, अगर आप सितंबर अक्टूबर 2020 में अगर आप देख रहे होते, तो मोस्ट म्यूचुअल फंड के पिछले 1 साल के रिटर्न इसी रेंज में थे। अगर उस टाइम पे आप देख रहे होते, या मे बी नवंबर दिसंबर में भी, मतलब लाइक 2021 में कोविड के जस्ट थोड़े 2-4 महीने बाद अगर आप देख रहे होते तो, या फिर मे बी 1 year आफ्टर कोविड, मे बी लेट सपोज जब टैक्स सेविंग की बात आई थी, लाइक मोस्ट पीपल रियलाइज, लाइक आई ऑल्सो, सिंस आई एम ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिंग म्यूचुअल फंड, सो मुझे ये चीजें दिखी थी कि अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स हु वर इन्वेस्टिंग इन द ईयर ऑफ लाइक जनवरी फरवरी मार्च, जब एचआर को बेसिकली proofs देने होते हैं टैक्स सेविंग वाले, तो at that point they were planning to invest in some mutual funds, and then they said कि यार I should invest in this fund, it has given 45% return. Then I said कि see, आप एक बार देखिए, वहां पे लिखा है लास्ट 1 year की रिटर्न्स 45%। 1 year में हुआ ये था कि अप्रैल 2020 में मार्केट बॉटम आउट हुआ था 7500 से, बॉटम आउट होके ऊपर जाना शुरू किया था, एंड विद इन अ ईयर इट वाज ओवर 12,000। तो गाइस अगर आप उस पॉइंट पे देखें, तो अगर आपका म्यूचुअल फंड 50% रिटर्न दिया है, तो इट हैज अंडर परफॉर्म द मार्केट। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट क्लियरली गाइस। मार्केट अगर 7,500 से 13,000 का हो रहा है, तो 90% की रिटर्न अप्रॉक्स मार्केट ने दी। अगर आपके म्यूचुअल फंड ने 65%, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको स्टैट्स बताता हूँ, आप चेक करिए। द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड एट दैट पॉइंट वर 2 फंड्स, फार्मा सेक्टर का फंड एंड आईटी सेक्टर का फंड। निपॉन इंडिया फार्मा फंड वाज द लीडिंग फंड एट दैट पॉइंट। आप उसकी एनएवी चेक करिए, 160, 168, 170 के रेंज में दिस एनएवी ऑफ द फंड वाज इन द मंथ ऑफ अप्रैल मई के आसपास, 2020 सॉरी। नेक्स्ट ईयर तक उसी फंड की एनएवी 270 रुपीज, 260, 270 रुपीज हुई थी 1 साल बाद। मार्केट 1 साल बाद 7,500 से 14,200 के ऊपर था, मतलब मोर देन डबल हुआ था। और ये फंड की एनएवी 160 रुपीज, 170 रुपीज से 320 नहीं हुई थी, 270 के आसपास हुई थी। सो गाइस द फंड अंडर परफॉर्म द मार्केट। मार्केट ने ज्यादा बेटर रिटर्न दी थी फंड के कंपैरिजन में, अंडर परफॉर्म किया था वो फंड मार्केट को। सो गाइस देखिए, अगर उस पीरियड में आप हमारी रिटर्न्स देखते, तो आपको भी देखने के लिए मिलता कि सी गाइस, हमारा एम है मार्केट को बीट करना। वी आर बीटिंग द मार्केट। हमारा एम ऐसा नहीं है कि यार कुछ भी एक बेसिक रिटर्न, बढ़िया रिटर्न, हम लोग बढ़िया रिटर्न उसी को मानते हैं जब रिटर्न मार्केट को बीट कर रही होती है। तो गाइस मोस्ट केसेस में आप पहली बात, आप फंड्स में जाएंगे तो बहुत फंड्स होते हैं जो मार्केट को बीट नहीं कर पाते हैं। कुछ फंड्स अगर बीट कर जाते हैं मार्केट को, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, रियलिटी ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। एक इंडेक्स क्लिंगिंग बिहेवियर होता है। फंड मैनेजर पता क्या करता है, ऐसे तरीके से चेंजेस करता है आपके पोर्टफोलियो में कि जो ज्यादा रिटर्न है वो डाउन होकर मार्केट के बराबर आ जाए, बिकॉज उसको बाकी फंड्स भी तो चलाने हैं। See, this is a very like, I shouldn't be speaking these things being in this industry, but this is the reality of the industry. I have met a lot of mutual fund managers in my career, मतलब I have won awards, ऐसे चीजें, तो उसकी वजह से मिलना होता है। I have met Mr. Nilesh Surana, who is the fund manager of Mirae Asset Tax Saver Fund, Mirae Asset Large and Mid Cap Fund, and Emerging Blue Chip Fund, and Mirae Asset Large Cap Fund. He has more than 20 years plus experience. He told me about this concept, about this index clinging behavior, कि यार हमें बाकी फंड्स भी तो चलाने होते हैं। तो अगर एक ही फंड सारे पैसे रिटर्न दे देगा तो बाकी कैसे करेंगे? सो दैट इज द थिंग। नाउ there are some questions ki in AI type of business what all companies are there in the market where Jarvis stands. So guys देखिए, मेरे हिसाब से तो I think AI में तो मुझे अभी तक कोई कंपनी दिखी नहीं है विघ्नेश जी, राइट? मतलब मैंने भी अभी तक नहीं देखा है कोई ऐसी कंपनी हार्डकोर जो ये काम कर रही हो। No, not I have even like I have discussed with a few small case people as well. They even haven't seen this type of thing. So we were listed on small case just to put our product out there. But then we realized कि जो hyper personalization है कि हर client के लिए अलग portfolio, वो small case करता नहीं है। So then we back out saying कि यार हम नहीं कर पाएंगे, तो हम 3-4 महीने के लिए listed थे, फिर देखा कि customer suffer कर रहा है।
कि हम उनके लिए स्पेशलाइज्ड पोर्टफोलियो नहीं दे पा रहे, तो हमने इसीलिए फिर वो बंद कर दिया। बट ऐसा कोई है नहीं वैसे। जी, there is one very interesting question जो मुझे पर्सनल चैट में आया है. See, this question is actually very interesting. Suppose कोई पर्सन है who is not allowed to trade in shares of few companies या few sectors. How will we take care of that thing कि भाई वो स्टॉक ना बाई हो कभी भी? Is there any provision for that? So as of today, मेरा पॉइंट क्या है कि the thing is, मैं बैकग्राउंड बताता हूँ. He works in IDFC First Bank and he is not allowed to buy shares of IDFC. Simple. So the best part is, for any advice we give, in case you have an advice of a particular stock, like let's say IDFC खरीदना नहीं है बट आपको आया है, आप चैट के फंक्शनैलिटी में बोल सकते हो ये मैं खरीद नहीं सकता हूँ, बिकॉज फाइनली एग्जीक्यूशन आपके हाथ में है, करेक्ट? तो आप बिना एग्जीक्यूट करे आप हमारे एडवाइजरी को हमारे चैट फंक्शनैलिटी में बोल सकते हो कि ये मेरा स्टॉक आई एम नॉट अलाउड टू बाय, वी विल रेकमेंड एन अदर स्टॉक फ्रॉम द बैक एंड फॉर यू विच विल नॉट हैव IDFC in it. Right, but having said that, it is currently not like we are also going to create more baskets later. Like, you know, some people may say I want to invest only in energy, I want to invest only in banking, so we'll be creating those baskets also using the AI methodology. But having said that, right now we have the chat functionality which is super effective, so you can simply say मुझे ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, हम आपका एडवाइस चेंज कर देंगे accordingly. Now Mr. Sameer is asking कि सर म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में कौन सा बेटर है, लाइक प्रोज एंड कॉन्स ही इज आस्किंग. एंड देन ही इज आस्किंग कि सपोज 10 to 12 ईयर 15 ईयर टाइम फ्रेम में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो क्या जारवेस में भी कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा? इट इज अ बेसिक क्वेश्चन बट आई थिंक आप इसको आंसर करें तो इट विल बी बेटर. True. So 80% of our customers already have mutual funds and stocks, right? But they are coming to us because they want more return. They want something like a PMS, but they don't want to put 50 lakhs to get a PMS, right? So that is where Jarvis is coming. It's not for the first time investor जिसको कुछ भी नहीं पता, risk नहीं पता, reward नहीं पता. So it is for that person who understands अरे market है, long term में 12% growth तो index दे रहा है. Jarvis in the past has given 10% above index. मान लो index 10% बढ़ा, Jarvis 20% बढ़ा. Jarvis index 10% गिरा, Jarvis गिरा नहीं, right? So this is the thing to understand. Now इसमें एक simple point है, ऑब्वियसली कंपाउंडिंग तो कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में होगा जब तक आपका कंसिस्टेंट रिटर्न है. हम 35% CAGR कर रहे हैं, मतलब कंपाउंडिंग तो हुआ है, 3 साल में 35% हर साल दिए हैं अपने एवरेज कस्टमर्स के लिए. राइट नाउ 35% मींस गाइस, मैं आपको एक चीज बताता हूं. आपको अगर समझ नहीं आ रहा है 35%, तो मैं एक बार एक एग्जांपल के साथ बताता हूं. सपोज आपके पास 1 लाख रुपए है, 1 साल बाद वो 1,35,000 बन गया. 2 साल बाद 1,35,000 का 35%, यानी 3,945 वो हो गया बेसिकली लगभग 45,000 का आसपास, 45-46,000 का गेन, यानी 1,80,000 2 साल के बाद बन गया. नियरली डबल्ड. अब हम लोग नियरली डबल्ड. सो बेसिकली लेस देन 3 इयर्स में ये डबल हो रहा है. अब मैं आपको गाइस एक सिंपल एक विजन दिखाता हूं. एक बार आप मेरे साथ सोचिए, एक विजन मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा इसको. एक सिंपल चीज, एक सिंपल क्वेश्चन विजन है कि अगर आपका जैसे लेट्स सपोज 2.5 साल में पैसे डबल हो जा रहे हैं, लेट्स सपोज, तो आप एक सिंपल चीज देखिए कि लेट्स सपोज यू स्टार्ट विद 10 लाख रुपीज. जैसे somebody is asking with 10 लाख रुपीज, 1 लाख पे भी सेम ही नंबर होगा, 10 लाख पे भी ऐसा ही कुछ होगा. सपोज 10 लाख रुपीज पे कोई शुरू कर रहा है एट द एज ऑफ 30 ईयर्स. एक सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि सपोज आपकी एज 30 है, कई लोगों की एज यहाँ पे 25-26 भी होगी, कई लोगों की ज्यादा होगी. मैं एक सिंपल एक जनरल बता रहा हूँ. सपोज आपकी एज 30 ईयर्स एंड यू हैव 10 लाख रुपीज और हर 2.5 साल में पैसे डबल हो रहे हैं. तो गाइस आपको मैं बताता हूँ, यू आर नॉट रियलाइजिंग द पोटेंशियल. मैं अभी आपको बताऊंगा, आप शॉक्ड हो जाओगे नंबर सुनते ही. 2.5 साल मतलब लिटरली यू विल गेट शॉक्ड. पता है जब आपकी एज 32.5 ईयर्स होगी तो 10 लाख का 20 लाख हो गया. जब आपकी एज 35 ईयर्स होगी तो 20 का 40 हो गया. 37.5 ईयर्स जब आपकी एज होगी तो 40 का 80. जब आपकी एज 40 ईयर्स होगी तो 80 का 1.6. देन 4 बार हुआ बेसिकली 40 इयर्स में, 10 साल में ये 1.6 CR बन गया, जस्ट 10 लाख रुपीस. 12.5 साल में जब आपकी एज 42.5 इयर्स होगी, दिस 1.6 विल बिकम 3.2 इजी, 3.2. देन 45 इयर्स पे 6.4. देन 47.5 इयर्स में 12.5 CR. 50 इयर्स की एज पे 25 CR. 52.5 इयर्स की एज पे
it becomes 50 CR and 55 years की एज पे 100 CR. So guys, अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपकी एज 30 साल के आसपास है, और अगर आप 55 की एज, जब तक आपकी रिटायरमेंट की एज होती है, और अगर आप 100 करोड़ रुपए नहीं कमा पा रहे हो, तो इसका मतलब आप चूज कर रहे हो ऐसे प्रोडक्ट को नहीं चूज करना. मतलब लाइक इट विल बी योर चॉइस कि भाई मुझे इतनी अच्छी चीज नहीं चाहिए, मुझे कुछ कहीं और चाहिए. आप विजन देखिए गाइस, 10 लाख रुपीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू 100 CR गाइस, 100 करोड़ रुपीज, 100 करोड़ रुपीज. एंड आपके पास जब 100 करोड़ होंगे तो आप टॉप 1% में आ रहे होगे. वो जो होता है ना 1% वाली चीजें जो लोग कहते हैं सक्सेस और ये चीजें, दिस इज अचीवेबल इन एनी मार्केट कंडीशन गाइस, बिकॉज एआई बना ही उसी के लिए है. नेगेटिव पॉजिटिव हर मार्केट कंडीशन के लिए बना है. राइट विघ्नेश जी, अगर आप भी कुछ बोलना चाहें, जैसे लेट्स सपोज वेदर दिस, लेट्स सपोज 35% CAGR आ रही है, 2.5 साल में पैसे डबल हो रहे हैं, और मे बी 3 years में भी पैसे डबल हो रहे हैं, तो आप बताइए लॉन्ग टर्म में हाउ डज मार्केट कंडीशन का क्या इससे कुछ असर होगा? करेक्ट. सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप मार्केट समझते हो, मतलब बहुत सारे लोग ने अभी बुल मार्केट देखा है, ग्रोथ मार्केट देखा है. पिछले 20 साल में मार्केट इज ग्रोन 12%, 25 साल में मार्केट इज ग्रोन 12%. अगर आप यूएस का मार्केट देखोगे, S&P 500, पिछले 100 साल में इट हैज गॉन थ्रू वर्ल्ड वॉर 1, इट हैज गॉन थ्रू वर्ल्ड वॉर 2, इट हैज गॉन थ्रू कोविड, इट हैज गॉन थ्रू एवरीथिंग, right? And still it has grown on average at 12%. So that is considered a benchmark index, 12%. Now, if you look at longer time frames in the US market, there were almost 5 years where the market was flat or downward also, right? But what is important is over a long term, it all averages out to 12%. मतलब 5 साल नीचे था, फिर अचानक से 2 साल में बढ़ गया, फिर वापस 4 साल नीचे था, वापस वो 2-3 साल में कवर कर लिया जितना भी नहीं हुआ था. तो इसीलिए बोलते हैं यू शुड ऑलवेज बी इन्वेस्टेड इन द मार्केट. नाउ सेकेंड पार्ट इज एआई. अगर हम शॉर्ट नहीं करते कोई स्टॉक को जो हमारे पास है नहीं, करेक्ट. सो मान लो अगर मार्केट नीचे जाता है कंटिन्यूअसली फॉर 3 years और समथिंग, वी विल ऑल्सो बी स्लाइटली लोअर बट बेटर देन द मार्केट फॉर श्योर. मतलब इंडेक्स 10%, वी बीटन द इंडेक्स बाय 10%. मान लो मार्केट 40% नीचे गिरा है, हम शायद 30% नीचे गिरेंगे, राइट. बट मार्केट मान लो 20% ऊपर जाता है, हम शायद 30% ऊपर जाएंगे. ये सब पास्ट के रिटर्न में. तो वैसे आप देखोगे +10% ओवर इंडेक्स इन द पास्ट, तो it is a good thing, but there is a market risk, subject to market risk, right? That is why we are all in this game. In the longer term, the only truth in the whole market is it's an upward journey of the index. That's the truth. So if you are beating the index, you will create wealth in the long term. Now there is one more question. I think बाकी सारे questions answer हो गए हैं. Just the taxation part. So वैसे तो clear ही होना चाहिए, but still let's discuss it कि how will be the taxation. मतलब like obviously it will be as per government rules only, but एक बार फिर भी discuss कर लेते हैं. So इस पे short term tax लगेगा सबसे ज्यादा. Like for example, most of the trades जो हम दे रहे हैं, ये 3 महीने से 4 महीने के अंदर पोर्टफोलियो चर्न होता रहेगा, है ना. बिकॉज एआई देखेगा कि अच्छा ये स्टॉक में जो अपसाइड है वो हमने अब्सॉर्ब कर लिया. और बेस्ट पार्ट ऑफ एआई वो बोलता है ठीक है, अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर गया है तो वो पैसा निकाल के दूसरे स्टॉक में डालो जहां पे अपॉर्चुनिटी आज दिख रहा है, आज के दिन दिख रहा है. एंड इसीलिए आप जितना भी पैसे डालते हो, एक वेलोसिटी ऑफ मनी होता है. वो वेलोसिटी वो होता है कि आपने उसमें परसेंटेज बना के फिर वापस आपने डाल के दूसरे में ग्रोथ किया है. सो कितने फास्ट आपका पैसा रोटेट होके ग्रो हो रहा है करके. So usually short-term capital gains tax लगेगा on all the profits that are there, which is about 15% if I'm not mistaken. Long-term is around 10%. That's the delta. But ये सब आपके broker के reports में मिल जाएंगे. Sorry, you're on mute, Apurva. Apurva, sorry. Apurva, you're on mute. If you're... Okay. So I was saying कि this thing is basically ये तो government के rules हैं. Like we cannot have any say in this. जो भी government के rules हैं, that is what like everybody has to follow. How frequent? Now there are 2 important questions. बस उसको take care करते हैं. I think otherwise all the questions are done. तो पहला ये है कि how frequent do you make changes in the AI tools to make decisions, give calls, and how frequently do you keep on checking? मतलब like आपको check करते भी रहना होता है कि whether it is performing properly or not. So how frequently that thing is done? Yeah, so auditing and all. So the auditing and the checking is literally done every 3 days, right? Like what's the performance? Is the performance in line? Is the AI working? Is it up, down, sideways? एक दिन के हम why are we not doing it every day? Because समझ में नहीं आता है trend में, but 3 days के trend में समझ में आ जाता है कि AI is working good or not. And the changes to the AI tool,
is something that is an AI upgrade, which we keep working on. So every 6 months, there is a back-end upgrade that we keep doing. So you will keep seeing it becoming more and more efficient. So now there is another question about auditing, legality से related question है कि are you working for some disclaimers वगैरह. So guys, मैं आपको again बता दूं. See, we are a SEBI registered company. SEBI registered company को compliances follow करने होते हैं. तो as per compliance auditing होगी. As per compliance हम लोग necessary declarations देंगे. If let's suppose हमारे किसी भी डायरेक्टर फाउंडर किसी का भी कुछ भी किसी और कंपनी है, पर्सनल होल्डिंग है, कुछ भी है, all the necessary disclaimers and जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें मतलब like properly as per SEBI rules हो रही हैं, because like we have to follow the compliances, that's strict, मतलब कोई लेना देना नहीं है. And एक question पहले आया था, I missed it. Like somebody was asking कि sir is it possible to pay after profits? तो guys मैं again आपको बताता हूँ, as per SEBI rules the thing is कि client agreement is mandatory and client agreement पेमेंट के बाद ही होता है. जब आप पेमेंट करते हो फिर आप एक एग्रीमेंट पे साइन करते हो कि भाई आपने उस एग्रीमेंट में यही टर्म्स कंडीशंस लिखी रहती है. बेसिक छोटा सा रहता है कि यार दिस इज द कंपनी, ये है रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह एंड दीस आर टूल्स, बेसिक जनरल जो हमने अभी डिस्कस किया. ये एग्रीमेंट मैंडेटरी होता है सेबी के बिहाफ पे साइन करना. आप अगर नहीं साइन करते हो यू कैन नॉट ऑन बोर्ड एज अ क्लाइंट. दिस इज द रूल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट. If you are investing in India, आपको ये रूल फॉलो करना ही होगा. So guys, if you are asking कि पेमेंट प्रॉफिट के बाद या जो भी चीजें, तो guys, this is सेबी का रूल. Even if we wanted to, we cannot change it. Second point, जो भी ऑडिटिंग, जो भी डिस्क्लेमर्स हैं, सारी चीजें एज पर सेबी रूल्स करनी ही होती हैं. You can visit the exchange website, सेबी की वेबसाइट पे, एनएससी की वेबसाइट पे भी आप जाओगे तो you will find our registration number जो हमने शेयर किया था. After this webinar also we'll share the सेबी registration number. आप जाके चेक कर सकते हो वहां पे, वो नंबर डाल के you will find all details about the सारी चीजें आप फाइंड कर लोगे वहां पे. एंड चार्जेस वाइज जो भी चीजें हमने डिस्कस कर लिया है. अदरवाइज गाइस अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो यू कैन डेफिनेटली व्हाट्सएप ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर. नाउ what was the average return during COVID-19 March period by the AI? बस ये एक लास्ट क्वेश्चन है, let's take this thing because ये एक benchmark I think set करेगा. This question came directly to me, so I'm asking. Yeah. So the beauty of this is like, I will not even have to ask before the crash or after the crash, because before the crash we were sitting on cash, right? So all customers on average were at least some 60% return in that year itself. On average, right? Like, so I'm saying that because we were able to sit on cash before the crash, once it went down, then we entered and we were able to do that. Yeah, so that's about 60%. I think we can close it for now. All questions are answered. Yeah, I think, yeah, Apurva, over to you. Okay, so guys, I think हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं. इसके बाद भी इफ यू हैव एनी डाउट्स गाइस, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आइए, बिकॉज गाइस आई थिंक हम लोग ओवर टाइम भी जा रहे हैं. सो गाइस आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बात करिए. वी विल बी शेयर लाइक जो भी क्वेरीज हैं हम लोग रिजॉल्व करेंगे. यस गाइस, ऐसा हो सकता है कि व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर रहे हो तो 2-4 घंटे बाद भी रिप्लाई आए, बट डोंट वरी, टुडे इज अ हॉलीडे, तो मंडे का तक आपको आ जाएगा रिप्लाई. डोंट वरी अबाउट इट. नाउ ऐप लिंक वगैरह सारी चीजें विल शेयर. आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करिए. इट इज ऑलवेज बेटर कि ऐप को डायरेक्ट डाउनलोड मत करिए, आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए. वील एडवाइस यू, बिकॉज गाइस देखिए वहां पे देयर आर लॉट ऑफ रिस्क प्रोफाइल, बहुत चीजें हैं. सो वील फर्स्ट like it's always better to first get in touch with a human as well. जब कस्टमाइजेशन की बात हो रही है तो कस्टमाइज कर लेते हैं. So that is how things are. So I think that is pretty much all from the session. WhatsApp number मैं एक बार पिंग कर देता हूँ चैट में. It is 9667413007. It is basically 9667413007. You can check this WhatsApp. मैं एक बार वापस से पिंग कर रहा हूँ. 9667413007. You have to like WhatsApp on this number. And guys, जो भी queries है, कोई भी चीजें, you can just reach out to me. एक बार before we end the session, just share your final comments कि कैसा रहा session. How did you like the session or not? How was the session? So that we can also feel some energy. Okay. Thank you so much, guys, for your feedbacks and comments. Great, guys. So thank you, Vignesh ji. This was absolutely a pleasure talking to you, and the audience also loved the session. Thank you so much for your time on a Saturday weekend again. And I think the first step that I always believe is the people who are in this session cared about being financially free. They cared about creating wealth. So I'm sure that each one of you all in this session is going to do amazingly well, irrespective, however you're going to be investing, because you all care about it. So I'm very happy to see that, this is
financial health that everyone cares about. So thank you for your time also, everyone. And I'm glad that I was able to present something new to everyone here. Okay, guys. Thank you. Bye. Have a Take good care. day. Bye. Thank you.